Good afternoon to all of you. We are going to begin with our session. Mr. Shubham Jaiswal, the speaker of the session, have joined. Now I request Tanvi to start with the session. Good afternoon to all. I, Tanvi, as a member of Career Guidance Cell, welcomes you all for a webinar on career in civil services. Now I invite our Career Guidance Cell chairperson, Dr. Megha Sharma, to give introduction of webinar. Good afternoon to all. I, Dr. Megha Sharma, on behalf of Career Guidance Cell, welcomes you all for webinar on Career in Civil Services, which is being organized by Career Guidance Cell in association with Career Academy. Dear participants, our purpose behind organizing this webinar is to make you all aware about the career opportunities in civil services, about various exams that are being conducted in respect of civil services, what preparation you need to make in respect of these exams. So to focus on this, we have with us our speaker, Mr. Shubham Jaiswal. It's our pleasure, sir, you are with us, and we welcome you, sir, for this webinar. Dear participants, it's a great opportunity for all of you. I hope you will utilize this opportunity at your best and have maximum benefit from this, sir. Thank you very much. Okay, hello everyone. मेरी Yes. आवाज आ रही है मैम? Yes, sir. Wait a minute. Yes, sir. 1 second. Na? Tanvi will. Yes, Tan. Now I invite KU to introduce and welcome our speaker, Mr. Shubham Jaiswal. Thank you, Tanvi. I, Keyur Saraya, on behalf of Career Guidance Cell, take this opportunity to welcome you all. It's my privilege to introduce speaker of today's session, Mr. Shubham Jaiswal, sir. His education background is he has completed Masters in Economics and pursued law first year. By profession, he is the youngest GST inspector of Maharashtra and also the owner of 8 branches of Career Academy. Thank you, sir. Thank you, sir. We welcome you, sir. No? You can start with it. Yeah. Okay, done. Okay, thank you so much मेघा मैम और बाकी केयूर को तो मैं जानता भी हूँ, कॉलेज में भी मिला हूँ केयूर से. So thank you so much मैम, आपने मुझे इस चीजों में बुलाया. Okay, fine. तो किसी को भी यहाँ पे जितने लोग भी हैं, किसी को कोई भी आइडिया है सिविल सर्विसेज के बारे में, अगर कोई मुझे कुछ भी बताना चाहता है, ऑफ कोर्स प्रोफेसर्स को छोड़ के मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ. प्रोफेसर्स को तो नॉलेज होगा, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स मुझे दिख रहे हैं. जतिन सर दिख रहे हैं मुझे, वृशाली मैम दिख रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स मुझे दिख रहे हैं जिनको मैंने ऑलरेडी कॉलेज में देखा है. स्टिल बाकी कोई बच्चों में मुझे अगर किसी को कुछ भी बताना है कि किसी को it is type of administrative service, not a military, but थोड़ा लाउड बोलो, आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा लाउड बोलो. I am saying it is a administrative type service, not like a military purpose and all. So it's a type of competitive exams for our administrative services and for other services in government sector. ओके सबसे पहले तो मैं ये चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ चीजें मेरे बारे में बहुत लोगों को पता है एंड जिनको नहीं पता है वो भी मैं बता देता हूँ कि कैसे ये सारी चीजों की शुरुआत होती है और क्या चीजें होती है. सबसे पहले एक सिंपल सी लॉजिक है कि अगर जिसको भी सिविल सर्विसेज के बारे में करना होता है, चाहे वो 21 साल का लड़का हो या लड़की हो या 18 साल का लड़का लड़की हो या फिर मैं एक 28 साल के लड़के की बात करता हूँ, सिंपल सा लॉजिक ये चीज है कि जिसको भी सिविल सर्विस के बारे में अगर कुछ भी चीजें करनी होती है, सबसे पहले लोग क्या कहते हैं, सीधा जाते हैं अपने दोस्तों से बात करते हैं, किसी से कुछ भी चीजें बात करते हैं कि यार सिविल सर्विसेज करना है, मुझे ना आईएएस बनना है. सबको लग्जरी लाइफ जीनी है, पर जो लग्जरी लाइफ की एक मेहनत होती है वो जल्दी कोई नहीं करता. सिंपल सी लॉजिक एक मैं बताता हूँ, एक किसी का नाम ले लेता हूँ, मेरे स्क्रीन पे है कन्हैया चौधरी का नाम ले लेता हूँ. ठीक है, कन्हैया को अगर सपोज आईएएस बनना है, कन्हैया क्या करेगा, एक उसके बेस्ट फ्रेंड सपोज पारस गुप्ता उसका बेस्ट फ्रेंड है, पारस को फोन करेगा कि यार मुझे ना आईएएस बनना है, क्योंकि उसने मूवीज में आईएएस आईपीएस की वर्ड दिखा देते हैं, सिंघम मूवी है, फिर बहुत सारे मूवीज में दिखा देते हैं, तो सीधा उसको फोन करता है कि यार मुझे ना आईएएस बनना है. तो बोलते हैं यार आईएएस बहुत टफ है, आईएएस बनने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, 18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, 16 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, 20 घंटे पढ़ने पड़ते हैं. ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, आपको 18 घंटे 20 घंटे नहीं पढ़ने होते हैं. ये एक फैक्चुअल एक मिथ है जो मार्केट में घूम रहा है. सिविल सर्विसेज के लिए 3 स्टेज में एग्जाम होता है. एक होता है उसका प्रीलिम्स,
एक होता है उसका मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। 3 एग्जाम्स होते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक सीसैट होता है और उसके साथ उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक होता है जीएस का पेपर। सीसैट में 200 मार्क्स का पेपर है। सीसैट मतलब क्या होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब उसमें थोड़ा सा मैथ्स है, थोड़ा सा रीजनिंग है और थोड़ा सा इंग्लिश है। रीजनिंग का मतलब सिंपल सा लॉजिक है, ए बी का भाई है तो बी ए का क्या है, थोड़ा ब्लड रिलेशन टाइप, एक माइंड गेम टाइप क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल सा लॉजिक होता है। 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 में से आपको 200 मार्क्स रहता है, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूँ। 200 मार्क्स में से अगर किसी स्टूडेंट को 67 मार्क्स है और किसी स्टूडेंट को 200 में से 190 मार्क्स है, दोनों वन इन द सेम है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसको 67 मार्क्स हो या किसी को 167 या 190 मार्क्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब एक जगह पे सेम है। उसके बाद आता है जीएस। जीएस में जब मैं मॉक टेस्ट देता था, यूपीएससी की बात करूं, मॉक टेस्ट देता था, तो मॉक टेस्ट में अगर मुझे प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है, मैंने जहां 60 क्वेश्चन राइट किया मैं वहीं पे पेपर असाइड कर दिया कि मुझे उसके आगे कुछ करना ही नहीं। क्यों असाइड कर दिया? क्योंकि आज तक का सिविल सर्विस में रिकॉर्ड है कि कोई भी 120 के ऊपर आज तक किसी ने कट ऑफ गया ही नहीं। 120 के ऊपर मार्क्स सब लोग ने लाया, लेकिन आज तक 120 के ऊपर कट ऑफ गया नहीं। इस साल की बात करूं, 2019 प्रीलिम्स की बात करूं, तो कट ऑफ था 98 आउट ऑफ 200। 98 मतलब अगर आप 50% भी मार्क्स ला रहे हैं तो भी वेल एंड गुड है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप ये प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, आपके सामने आता है मेंस, जो कि अब सिविल सर्विसेज की इंपॉर्टेंट स्टेज चालू होती है। मेंस में क्या होता है? मेंस में सिंपल चीजें होती हैं। मेंस में आपके पास, अगर आपको किसी के पास पेन पेपर है तो नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं नोट डाउन करना है तो करियर एकेडमी का मैं आपको एक ब्रोशर शेयर कर दूंगा, मेगा मैम शेयर कर देंगे, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग कॉल करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी को पूछने में कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। नोट डाउन जो चीजें करनी है, डाउट्स नोट डाउन करनी है तो लेट मी कंप्लीट माई साइड, आप लोग डाउट्स लिखते रहना, एक साथ जितनी डाउट्स पूछनी है उतनी डाउट्स पूछ लेना, और किसी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर से भी बात करनी है तो वो भी बातें करवा देंगे। खैर आगे बात करते हैं। उसके आगे होता क्या है? मेंस आता है। तो मेंस में क्या होता है? मेंस में आपको टोटल होते हैं 9 पेपर, एक एक करके आपके पास टोटल होते हैं 9 पेपर। अब 9 पेपर देख के तो आपकी हालत खराब हो जाएगी कि सर 9 पेपर देना है। आप कॉलेज में कितने पेपर देते हो? 6-7 पेपर तो ऐसे ही दे देते हो ना। तो सिविल सर्विसेज में जिसको आपको जॉब मिलेगा, अगर यहाँ पे आई थिंक जितने लोग भी बैठे हैं एटलीस्ट 50%, 55%, 60% तो कोई भी लाता होगा। क्यों पता है? क्योंकि सबको पता है कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं सब आपके क्लास में बैठे हैं, आपको सबके बैकग्राउंड पता है कि कौन 60% वाला है, कौन स्कॉलर है। हम क्लास में एक स्टेज डिसाइड कर देते हैं कि ये ना स्कॉलर की बेंचेस है, फर्स्ट बेंचेस इज स्कॉलर बेंचेस, बैक बेंचेस इज मस्ती वाला बेंचेस। टीचर्स भी आते हैं तो अरे बैक बेंचेस को ज्यादा सुनाते हैं, आगे बैठे तो टीचर ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, ऐसा कुछ सारी चीजें होती है। सिंपल सा लॉजिक है, उन लोग से कोई लेना देना नहीं। आप क्लास में कॉम्पिटिट कर रहे हैं, क्लास में कंपटीशन होता है तो आप बोलते हैं कि यार इससे ज्यादा परसेंटेज आया, इससे कम परसेंटेज आया। सिविल सर्विस में भी यही चीज है। सिविल सर्विस में आप कॉम्पिटिट कर रहे हैं तो आपको किसी से ज्यादा परसेंटेज आएगा, किसी से कम परसेंटेज आएगा। खैर आगे बात करते हैं। आगे होता क्या है? सिविल सर्विस का मेंस एग्जाम होता है। जैसे कि प्रीलिम्स हो जाता है अप्रोक्सीमेटली मार्च के आसपास, या फिर इस साल से अभी मई जून में हो रहा है। लास्ट 3 ईयर से मई जून में एग्जाम्स हो रहे हैं। 2017 की बात करूं तो 30 मई को था, फिर 2 जून को हुआ, फिर 3 जून को हुआ। इस साल का तो 4 अक्टूबर को है, क्योंकि दिस सिचुएशन, ये कोविड का सिचुएशन की वजह से 4 अक्टूबर है, वरना हर साल मई एंडिंग या जून फर्स्ट वीक में यूपीएससी का सेमिनार खत्म होता है, यूपीएससी का प्रीलिम्स खत्म हो जाता है। फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आते आते 1-2 महीने लगते हैं एंड एग्जाम्स होगा मेंस का अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर चला जाता है एग्जाम होते होते। अक्टूबर में 9 पेपर में से 1750 if you want to note down, 1750 मार्क्स का मेंस एग्जाम होता है। 1750 मार्क्स का मेंस एग्जाम होता है। अगर आपने 1750 और इंटरव्यू 275, एक बात ये बताना, इंटरव्यू में सिंपल क्वेश्चंस क्या होते हैं, सब ये आते हैं आपके व्हाट्सएप हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, ये सब जगह पे शेयर होते हैं कि ये चीजें ना सिविल सर्विस के इंटरव्यू में पूछा गया था और सिर्फ टॉप रैंकर आ जाता है कि इसने इसका एग्जाम दिया था। ऐसा कुछ नहीं होता। सिविल सर्विस का जो इंटरव्यू होता है वो दूसरी चीज है, और जो एक्चुअल आपके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे जो चीजें घूमती है वो दूसरी चीज है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जिसने कभी इंटरव्यू दिया नहीं है वो उस बारे में भले बात कर सकता है कि बहुत टफ है, लेकिन जो जिसने एग्जाम ने क्लियर किया हुआ है कि किसने एग्जाम क्लियर किया हुआ है, किसने क्लियर नहीं किया हुआ है,
वो अगर जो एग्जाम देता है तो वो बता सकता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली सिविल सर्विसेज। हमारे पापा मम्मी हमेशा बोलते रहते हैं ना कि यार टाइम की वैल्यू समझो, टाइम की वैल्यू समझो। हमेशा हमारे पापा मम्मी बोलते हैं बेटा पढ़ लो, ये टाइम चला गया ना तो वापस नहीं चला जाएगा। हम घंटों अपने फोन पे सिर्फ टाइम पास करते रहते हैं, फोन को स्क्रॉल करते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, लेकिन यही उंगली किसी दिन आपके ऊपर उठेगी और बोलेंगे कि फिर बोलना सबको कि सर जिंदगी में हम सिर्फ टाइम पास किया। तो एक बार टाइम निकल गई फिर जिंदगी भर वो उस चीज के लिए पछताते रहोगे कि क्या चीज है। आपसे 2 साल पहले आप लोग कभी नहीं जा सकते, लेकिन एक बार जो चीजें टाइम निकल गई तो कभी नहीं आ सकते। फिर क्या बताता हूँ, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू और मेंस दोनों मार्क्स मिला के 2025 मार्क्स का एग्जाम होता है। कैन एनीबडी यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है कि 2025 मार्क्स में से आज तक का हाईएस्ट मार्क्स कितना होगा? एनीबडी कैन टाइप एंड सेंड मी। 2025 में से आज तक का हाईएस्ट मार्क्स कितना होगा? जैसे आप लोग 800 मार्क्स का एग्जाम 1120, ओके हर्ष पटेल। और कोई 1050, ओके एनीबडी 1000 1000 और कोई 1800 850, ओके चलो आई टेल। आज तक 2000 नहीं 120 कहां से होगा? ठीक है चलो अब मैं बताता हूं कि कितना होगा। ओके डन 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 जिसने बताया। अब क्या होता है, अब मैं अगर आप लोग को बता रहा हूं कि आज तक का यूपीएससी का सिविल सर्विस 50 वेबसाइट अलग अलग चीजें बोलेंगी, बट 2017 टॉपर अनिरुद्ध दुर्शेट्टी, ये नाम याद रख लेना, 2017 में इस बंदे ने टॉप किया था यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का, और उसने मार्क्स लाया था 1049 which is the highest till date। ये सिविल सर्विस एग्जाम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टाइम से हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा है। तो तब से लेके आज तक 1049 इज द हाईएस्ट, एंड 2025 में से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1049 अप्रोक्सीमेटली 50% भी नहीं होता है। तो अगर आप 49 पॉइंट समथिंग परसेंटेज होते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। एक चीज है, सिंपल लॉजिक में बता दूं कि 50% भी अगर आपने सिविल सर्विस में मार्क्स लाते हो तो आप पूरे दुनिया, पूरे इंडिया में सबसे टॉपर हो, जो कि आज तक ये काम किसी ने नहीं किया। जैसे मैं आज अनिरुद्ध दुर्शेट्टी की बात कर रहा हूँ तो कोई कल अंकिता पांडे के बारे में बात करेगा, कल्याणी झा के बारे में बात करेगा, जीत भट्टाचार्य के बारे में बात करेगा, कोई भी चीज है किसी के बारे में बात करेगा। 10th में मुझे कितना परसेंट आया था? 50%। 12th में मुझे आया था 51%। पढ़ाई लिखाई में जीरो, कुछ पढ़ना लिखना कोई चीजें नहीं थी। लेकिन आज आप लोग के सामने सेमिनार इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज यंगेस्ट जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ। यूपीएससी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, 861 कट ऑफ गया था, बट मेरा मार्क्स था 858। 2018 की बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैंने क्लियर नहीं कर पाया था। बट अगर मैं आज की बात करूं तो 2019 में आई क्लियर प्रीलिम्स, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इन इंडिया, आई क्लियर मेंस एंड यूपीएससी क्लियर किया विथ रैंक 482। ऑल ओवर इंडिया मेरा रैंक है 482। शुभम जायसवाल। ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि 1 साल की मेहनत है। यूपीएससी इज जस्ट 1 ईयर मेहनत, दैट्स इट। 1 ईयर, नॉट अ हार्ड वर्क, इज जस्ट अ स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं 1 घंटे तो दैट्स मोर, एक साल तो दैट्स मोर देन इनफ। उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। सिविल सर्विस इज जस्ट अबाउट स्मार्ट वर्क और कुछ नहीं है। प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये 3 चीजों को ही क्लियर करना है। 2013 में मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था, उसके पहले नासिक में हॉस्टल में था। 2000 आई थिंक मैम, और किसी को आप ज्वाइन मत कीजिए क्योंकि शायद बाकी लोगों को आप समझेगा नहीं, बहुत लोग आ रहा है वेटिंग लिस्ट पे, तो आप लोग देख लीजिए मतलब, ठीक है। हाँ, तो 2013-14 में मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था एंड मेरे डैड जो थे उनको ये चीजें समझाने के लिए, समझने के लिए उनको एक नौकरी करनी पड़ी। एंड ही हैज लाइक उस वक्त पे वो ड्राइवर की नौकरी करते थे रिलायंस कंपनी में। बहुत लोगों को ये चीजें पता भी है एंड विकिपीडिया पे भी ये सारी चीजें, जो मुझे पहले से जानता है या सेमिनार मेरा अटेंड कर चुका है उसको ये सारी चीजें पता है। लेकिन अगर जिसने अटेंड नहीं किया है वो लोगों को मैं बता रहा हूँ। 2013-14 में मेरे ड्राइवर थे, 13,000 सैलरी थी उनकी, और वो उस वजह से बस उनको बस घर पे चलाना था कि बच्चों को पढ़ाना है। मेरी कोई भाई बहन है नहीं, लेकिन घर तो चलाने के लिए, आज कभी अपने माँ बाप से जाके पूछना कि घर चलाने में कितनी मेहनत लगती है। आप लोग को लगता है कि 10,000 बहुत सारी चीजें है, लेकिन जब कोई घर एक्चुअल में घर चलाता है ना तो 50,000 रुपए भी कम पड़ता है। ऑनेस्टली ये चीजें कभी भी अपने माँ बाप से जाके पूछना, या फिर अगर यहाँ पे कोई अपना घर खुद चलाता होगा, बच्चों की बात कर रहा हूँ, प्रोफेसर्स की नहीं, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो कोई जो घर चलाता है उसको पता होगा कि 50,000 की वैल्यू क्या है। अब क्या होता है, फिर उसके बाद डैड ने बोला शुभम तुम पढ़ाई करो। जब ये सारी चीजें दिमाग में ट्रिगर होने लगी कि यार करना क्या है, कुछ तो करना है जिंदगी में, फिर आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर वेरियस एंड नंबर ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स। डू यू अवेयर अबाउट कि साल भर में
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, जस्ट आई टॉक अबाउट बैंकिंग एग्जाम्स, आई टॉक अबाउट टैक्सिंग एग्जाम जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेता है, एसएससी एग्जाम्स लेता है, आई टॉक अबाउट बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे, जो आप रेलवे में टीसी वगैरह के एग्जाम्स की बात करो। ये 3 ब्रांचेस की अगर मैं सिर्फ बात करूं, ये 3 ब्रांचेस में साल भर में 33 एग्जाम्स होते हैं पर ईयर। अभी तो सब चीजें मर्ज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 33 एग्जाम्स होते हैं। 8th पास के लिए भी एग्जाम्स होता है, 10th पास के लिए भी एग्जाम्स होता है, 12th के लिए भी होता है, ग्रेजुएशन के लिए भी एग्जाम्स होते हैं। कि आप अगर 10th पास है तो भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, आप 12th पास है तो भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, आप ग्रेजुएटेड है तो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। बट उन लोग में सिर्फ यही डिफरेंस रहेगा कि सैलरी थोड़ी ऊपर नीचे रहेगी, दैट्स इट, और कुछ लेना देना नहीं। उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें जब बढ़ती है तो ये चीज का अवेयरनेस नहीं होता है ना। मैं आपको कुछ एक और चीजें शेयर करूंगा कि एक साल में अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ रुपीस पास होते हैं। लास्ट बजट देख लेना, अगर किसी को पता है, फरवरी में बजट आता है, 150 करोड़ पास होते हैं गवर्नमेंट से। फॉर व्हाट? फॉर अवेयरनेस टू ऑल ऑफ अस, कि हमें ये चीजें पता चले कि 150 करोड़ के जो आप लोगों को अवेयरनेस पता चले कि गवर्नमेंट में जॉब्स होते हैं, गवर्नमेंट में जॉब की वैकेंसीज निकली है, इसके अवेयरनेस के लिए। अगर आज तक पे एडवर्टाइज हो रही है, आज तक इज ए प्राइवेट फर्म, तो आज तक क्या करेगा, आज तक एक किसी से पैसे लेके तभी एडवर्टाइज करेगा ना। तो उन सब के एडवर्टाइजिंग के लिए मीडिया में या एन नंबर ऑफ जगह पे एडवर्टाइजिंग के लिए 150 करोड़ रुपीस खर्च होते हैं, और ये 150 करोड़ शायद से सिर्फ मंत्रियों के पॉकेट में जाते हैं। ये सिंपल लॉजिक मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ना मीडिया पे आता है, कहीं न्यूज़पेपर में आता है जिसका हार्डली कुछ खर्चा होता है। वो न्यूज़पेपर में एक बार प्रिंट हो गया कि गवर्नमेंट में वैकेंसी निकली है, दैट्स इट। और आज तक में जितने भी अप्रोक्सीमेटली 200 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, 200 में से कोई 20 लोग बता दो कि वो न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ता है। ऑनेस्टली आंसर कर देना कि डेली बेसिस में कोई 20 लोग, मैंने सिर्फ 20 लोगों को बोला, यस कन्हैया आप पढ़ते होंगे, इट्स ओके, बट 20 लोग से ज्यादा कोई डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता होगा। ऑनेस्टली ये फैक्चुअल चीज है। 2-4 लोगों की बातें आ रही है कि यस आप लोग पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। बट 200 में से 20 लोग पढ़ते होंगे आउट ऑफ 200, 1:10 का रेशियो है, उसमें 10 में से एक बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है। सिंपल से यही चीज है कि इसीलिए अवेयरनेस हमें पता नहीं चलती। न्यूज चैनल बहुत हार्डली लोग, यहाँ पे सिविल सर्विस एस्पिरेंट है इसलिए शायद से तो ज्यादा लोग पढ़ते होंगे कि आप लोगों को करियर आप लोग देख रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन के श्रॉफ कॉलेज की अगर सिर्फ मैं बात करूं, यहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम उसी का क्राउड होगा, सिर्फ श्रॉफ कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो के श्रॉफ कॉलेज में से अप्रोक्सीमेटली 10,000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे में से 200 बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो सोचो कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे एक्चुअल में। ये सिंपल लॉजिक है। तो न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता, किसी को अवेयरनेस नहीं होती क्या चीजें करनी होती है, कैसे पढ़ना होता है। अब दूसरी चीज है कि यूपीएससी के बारे में मिथ है कि भाई बहुत लंबा खर्चा है, इसमें 2-4 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो क्लासेस है उसकी एक साल की फीस है 3,27,000 की, एक 3,27,000 फॉर ए मिडिल क्लास पर्सन। अगर जो मिडिल क्लास में है उसको 3,27,000 रुपए खर्चे करने हैं एक साल के लिए, जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि उसका कुछ हो जाए। आधे तो माँ बाप वहीं पे स्टेप बैक कर लेते हैं कि बेटा 3,27,000 तो अगर होते तो मेरा बेटा ऑलरेडी कोई बिजनेस में होता, सिविल सर्विस के बारे में तो सोचता ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक कि अगर मेरे पास लाखों रुपए हैं तो ऑफकोर्स मैं कोई एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, या तो कोई एक बड़े कंपनी का मैनेजर हूँ, या तो किसी बड़े गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ। तो ऑलरेडी पिताजी हमारे या मम्मी हमारी या फिर जो अर्निंग मेंबर है फैमिली में वो ऑलरेडी किसी बड़े गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो मेरा बेटा चलो ना ऐश कर रहा है, ठीक है। आज करके ये जो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इसी चीजों के लाइव एग्जांपल्स आपके सामने। तो यूपीएससी इज नॉट एट ऑल टफ एग्जाम, या फिर मैं नॉट यूपीएससी बात करूं, एक नॉर्मल एग्जाम की बात करूं, कभी भी आप लोग किसी आईएएस को किसी ने देखा है या आईपीएस को देखा है, एक्सेप्ट फैमिली मेंबर, कोई फैमिली में होगा तो ठीक है, लेकिन फैमिली के अलावा। हाँ सागर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। हाँ देखा है, कैसा लगता है? उनको देख के गाली देने का मन करता है या लगता है कि यार लाइफ हो तो ऐसी? नहीं सर, प्राउड फील होता है कि इतनी मेहनत के बाद जब वो पास करके यहाँ पे आते हैं, वो पोस्ट पर आते हैं, कि उनके लिए एक सर एक रिस्पेक्ट होती है हमारे दिल्ली में कि रिस्पेक्ट होती है। हाँ। अच्छा, इसमें और भी बहुत लोग हैं, इन सब के लिए रिस्पेक्ट है क्या तुम्हारे लिए? इधर बहुत सारे लोग हैं, 195 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, और किसी के लिए कितनी रिस्पेक्ट है? चलो उदित पंड्या की बात करता हूँ। उदित पंड्या को जानते हो तुम?
नहीं सर, लेकिन सारे उन बच्चों के लिए तो रिस्पेक्ट तो होती है कि जो एक बार जो फर्स्ट टाइम जो कॉलेज में पैर रखते हैं या फिर कॉलेज में कदम रखते हैं, वो एक कुछ सिंपल फ्यूचर के लिए लॉजिक बोल रखते दो, हैं। एक सिंपल लॉजिक बोल दो, एक मैं नॉर्मल सी बात करूं, तुम्हें सागर तुम्हें क्या बनना है लाइफ में, करना क्या है जिंदगी में, बनना क्या है? सर आर्मी में ज्वाइन करना है? आर्मी ज्वाइन करना है। अच्छा, आर्मी में ज्वाइन करना है। आर्मी के इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, एनडीए दिया था कभी जिंदगी में? नहीं सर, मेरे एनडीए में मेरा नंबर लगा था, लेकिन मेरा ये टाइम पे इसी साल मेरा नंबर लगा, लेकिन उसमें मेरा एज ज्यादा हुआ। वहाँ पे 19 चाहिए था और मेरा 20 ईयर्स है अभी। वहाँ पे मेरा सीडीएस की ट्राई करो, सीडीएस की ट्राई करना। सीडीएस में इस साल में की से एनसीसी से ट्राई करो कि एनसीसी 3 साल कंप्लीट करने के बाद मैं वहाँ पे ट्राई करूँ। एनसीसी से जा सकते हो, एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है, मैंने भी एनसीसी किया है, लेकिन हाँ। तो ठीक है, फिर कभी हम फुर्सत से बात करेंगे। बाकी बच्चे बोर हो जाएंगे, बोलेंगे सर सिर्फ सागर पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे 190 लोग हैं सर, हमारे बारे में भी बात करो। कोई नहीं, ठीक है। तो सिंपल चीज है, ठीक है सागर, यू कैन, हाँ डन। सिंपल सा चीजें हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना इतना टफ टास्क नहीं है। आपकी श्रॉफ कॉलेज की प्रिंसिपल जो है लिली भूषण मैम, उन्होंने भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, ट्रस्ट में। कभी उनसे मिलोगे या फिर उनसे बात करना, तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि बेटा मेरे उस टाइम पे ना, मुझे भी आईएएस बनने का बहुत शौक था, आईएएस बनने का बहुत शौक था। ट्रस्ट में जब यूपीएससी में नाम आया, जब मेरे पापा को लोग गाली देते थे कि कहाँ एकलौता लड़का है, मुंबई लेके चले गए, लेकिन जब आज अचीव कर लिया, 8 ब्रांच खोल दिया मुंबई में, अभी तो पैन इंडिया बना रहा हूँ, ये सारी चीजें जो लॉकडाउन में सारी चीजें, सब लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे थे। मेरे पास 4 बच्चे हैं, मैं 4 बच्चों का नाम बोलता हूँ। ये 4 अक्टूबर को एग्जाम है, प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आएगा ना, तो इसमें कैरल डिसूजा करके एक नाम मैं अभी बोल रहा हूँ, कैरल डिसूजा, कोई भी लिख लेना, 4 अक्टूबर का नाम है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लड़की इतना मेहनत करती है, इतनी सारी चीजें करती है, उसको इतना नॉलेज है। अब आप लोग बोलते हो कि पापा को मैं बोलता हूँ, पापा पहले डिमोटिवेट करते थे कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। पापा इसलिए डिमोटिवेट करते थे क्योंकि आप लोग घंटों पर फोन में टाइम पास करते हो, कि पापा को लगता है कि बेटा पढ़ता ही नहीं है, तो यूपीएससी में 18 घंटे क्या पढ़ना है, 18 घंटे नहीं पढ़ना है। टीना दाबी का बात करूंगा, टीना दाबी मैम से मैं पर्सनली मिला हूं, कभी गूगल करना टीना दाबी, जिनको नहीं पता होगा या कोई जानता भी होगा तो अच्छी बात है। टीना दाबी मैम 2015 एंड बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। 2015 में उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, पहली बार एग्जाम में बैठे और पहली बार में फर्स्ट रैंक लेके आए, ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट रैंक इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप करना, फर्स्ट रैंक लाना एक बार पहली बार हुआ था 2015 में टीना दाबी ने। उनके वीडियोस देखना जिन्होंने टॉप किया था, उन्होंने एक ही चीज बोला है कि आप 24 घंटे में से अगर आप 16 घंटे टाइम पास कर लो, आपको 16 घंटे मस्ती मजाक के लिए दिया, लेकिन अगर गिन के आप 6 घंटे से लेके 8 घंटे अगर आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए आज निकाल सकते हो, 6 से 8 घंटे, तो दैट्स मोर देन इनफ। आप कुछ भी करना चाहो, सब चीजें कर सकते हो, लेकिन अगर 6 से 8 घंटे अपनी जिंदगी के लिए अगर आप निकाल सकते हो, तो लाइफ आज से 10 साल बाद कहां से कहां हो जाएगी। वही मैं बता रहा था, मेरे पापा को लोग गाली देते थे कि एकलौता बेटा है, कहाँ लेके चले गए, यहाँ छोड़ दिए, मुंबई में जैसे शहर में भाड़े पे रह रहे हैं, यूपी में सबका जो यूपी साइड से होगा उनको पता है, या फिर जो गांव साइड जिनका जमीन होगा उनको पता है कि गांव साइड में कितने बड़े बड़े मकान होते हैं, एकदम 3-3 माले के मकान होते हैं। यहाँ पे एक रूम किचन खरीदने जाओ, एक मीरा रोड की बात करता हूँ जो कि बहुत पीछे साइड में बात करता हूँ, मीरा रोड तो अभी सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, मैं मीरा रोड की बात करूं तो यहाँ पे एक रूम किचन 35 लाख का मिलता है, और यही 35 लाख आप यूपी गुजरात एक गांव साइड जाओ, वहां 35 लाख का आप 3 माले का घर खरीद लोगे, 35 से 40 या 50 लाख में तो आराम से 3 माले का घर आ जाएगा, जिसमें आप क्या, आपकी पूरी खानदान सुकून से रह सकती है। और यहाँ पे एक रूम किचन में फैमिली आ जाते तो बोलते, जो गांव से आते बोलते क्या साबुदाना जैसे एक जगह में रह रहे हो, एकदम छोटे से कंजेस्टेड एरिया में, गांव में जगह, तो जो भी फैमिली वाले आते थे वो यही बोलते थे कि यार बेटा कहाँ आ गए, मेरे पापा को हमेशा गाली देते थे। लेकिन आज जब उनके एनिवर्सरी पे 2018 की बात करूं, उनके एनिवर्सरी पे मैंने उनको फ्लैट गिफ्ट किया था 2 BHK का उनके एनिवर्सरी पे, और जब लोग आने लगे तो बोले कि ये फ्लैट की कीमत क्या होगी, तो उन्होंने बताया ये 90 लाख की तो फ्लैट है, अभी 1 करोड़ हो गई होगी। तो फिर जब उन्होंने बोला कि किसने दिया, तो बोलते ये मेरे बेटे की थी। जिंदगी में कितना भी कुछ अचीव कर लो ना, माँ बाप के लिए जब कुछ चीजें अचीव होती है ना, जब तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम किसी और के सामने जब तुम्हारी तारीफ करते हैं ना, दैट्स व्हाट यू कैन अचीव इन योर लाइफ। पैसे हो, इज्जत हो, हर जगह इज्जत होती है, पैसे आते हैं जाते हैं, आप हर एक चीज अचीव कर सकते हो,
लेकिन एक माँ बाप के नजर में इज्जत अचीव करना, और वो इज्जत तो माँ बाप हमेशा हर एक बच्चे की करते हैं, लेकिन उनके सामने वो किसी और के सामने हमेशा आप लोग के माँ बाप बुराई करते हैं कि मेरा बेटा नालायक है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीजें बोलते हैं, लेकिन कभी तारीफ कर दें, वो भी जिनके सामने जो गाली दे रहे हैं, फिर सोचो वो सिचुएशन क्या होती है। वो सिचुएशन आपके लाइफ में सागर के साथ हो चुका है, पापा हमेशा गाली देते हैं सागर, ठीक है। तो ये चीजें, नाउ एनीबॉडी कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, लेकिन एक एक करके पूछना, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, एनीबॉडी, वन, किसी को कुछ पूछना है। हाँ कन्हैया, हाँ बोलो। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बीच में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में डिफरेंस क्या होता है? नो सर, उसके बीच में टाइम गैप कितना मिलता है? ओके, प्रीलिम्स मैंने बताया कि अप्रोक्सीमेटली प्रीलिम्स होता है मई जून के आसपास, मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक में हो जाता है, अनटिल अनलेस ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन नहीं होगा तो। मेंस होता है सितंबर अक्टूबर के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर साल के डेट के हिसाब से सितंबर या अक्टूबर तक खिंचता है, ज्यादा नहीं खिंचता है। जैसे इस साल का मेंस की बात करूं तो सितंबर में खत्म हो गया था। हाउ सेलेक्ट द राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट, ओके जिल, मैं आई विल कम बैक टू यू, 1 सेकेंड। हाँ, तो मेंस, उसके बाद जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू मार्च अप्रैल में होता है, उसके पहले इंटरव्यू नहीं होता। तो आपका मेंस हो गया, प्रीलिम्स हो गया मई जून, सितंबर अक्टूबर आपका हो गया मेंस, और इंटरव्यू आएगा आपका मार्च अप्रैल। तो इस टाइप का आप टाइम गैप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, हाँ जिल, आप क्या पूछ रहे थे? 38 चैट्स आ गए, तो एक एक करके मुझसे पूछना, ऐसे मैं सबके चैट्स पढ़ के आंसर नहीं पढ़वाऊंगा, पर्सनली ऐसे डाउट्स पूछना। हाँ जिल बोलो। About the optional subject, like how to decide that what is right for. डिफरेंट बिटवीन जीपीएससी एंड यूपीएससी, हर एक स्टेट का सिविल सर्विस होता है और हर एक सेंट्रल का भी सिविल सर्विस होता है। स्टेट का अगर चीजें होती हैं, एक सेकंड, डोंट चैट में मत मैसेज करो, चैट में मैसेज करोगे मैं सबके चैट्स पढ़ के आंसर नहीं कर पाऊंगा। पहले मैं वॉइस के साथ इंटरेक्ट कर लेता हूं, जो वॉइस ओपन करके बात कर सकता है, देन आई विल चैट खोल के मैं सबका आंसर देता हूं। जीपीएससी एंड यूपीएससी में डिफरेंस ये होता है कि जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे महाराष्ट्र में है। कैन यू गिव डिटेल्स अबाउट बैंकिंग सेक्टर? ओके, आई विल गिव। गुजरात क्या होता है, गुजरात जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र में एमपीएससी होता है, गुजरात में जीपीएससी होगा। आप केरला चले जाओगे तो केरला केपीएससी होगा, और यूपीएससी जो होता है वो सेंट्रल लेवल एग्जाम, जैसे यूपी का, उत्तर प्रदेश का भी होता है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसा ही महाराष्ट्र का होता है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात का होता है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी क्या होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड यूनियन मतलब एज ए सेंट्रल। एक गेस डन, ठीक है। सर आरपीएससी कंडक्ट डीएसपी एग्जाम और नॉट? डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के आप स्टेट से जा सकते हो, जैसे अगर मैं महाराष्ट्र का सिविल सर्विस कर रहा हूं तो मैं डेप्यूटी कमिश्नर बनूंगा, मतलब डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनूंगा, और अब अगर मैं यूपीएससी से डाल रहा हूं तो डायरेक्टली मैं एसपी बनूंगा या एसएसपी बनूंगा। कितने भी सर बैफ के बाद क्या करना चाहिए? बैफ के बाद देखो, गवर्नमेंट एग्जाम आप बैफ करो, बीएमएस करो, बीए करो, बीएससी करो, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 35% वाले हो, आप 99% वाले हो, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको यूपीएससी को चाहिए, can you differentiate between stock market and share market? Okay, this is a civil service guidance. Stock market and share market is a different thing. So I just want to ask you one thing. Okay, sir, you continue. हाँ जी, एक सेकंड। तो डायरेक्ट एग्जाम पर लाइक सब इंस्पेक्टर, यस, हर एक स्टेट का होता है। जैसे पीएसआई एग्जाम होता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर, एमपीएससी कंडक्ट करता है पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम, और डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के एग्जाम्स भी आप दे सकते हैं। डीएसपी होता है और एसपी होता है या एसएसपी होता है, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी के ऊपर आता है, एक अशोक स्तंभ और एक स्टार होता है उसको। आप इसके सारे भी चीजें जाएंगे तो ये प्रमोशन से आता है। आईजी भी आप प्रमोशन से बन सकते हैं। तो पुलिस में भी बहुत सारी चीजें रैंक्स होती हैं। तो पहले तो आप 3 स्टार बनते हैं वंस यू क्लियर योर यूपीएससी। एक 77 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। आप हैदराबाद में आपकी ट्रेनिंग होगी पुलिस की, आईएएस की ट्रेनिंग होती है लबासना मसूरी में। तो हर एक डिफरेंट, जैसे मेरा 482 रैंक आया, मुझे रेलवे पर्सनल मिल रहा है, मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास 2 गवर्नमेंट जॉब के ऑफर्स है, एक ऑलरेडी कर रहा हूँ, एक और ऑप्शन है,
पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी जो जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्टिंग है वो ऑलरेडी मुंबई में है, 8 ब्रांचेस है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं क्यों जाऊं एक रेलवे पर्सनल के जॉब के लिए। हाँ जी, क्या बोल रहे थे, बोलो। यस आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, देखो आपने जैसा बोला कि हम सबसे सुनते आ रहे हैं कि लाइक सिविल सर्विसेज है, बहुत टफ एग्जामिनेशन है, इसके लिए हमें लाइक क्लासेस जाना ही पड़ेगा कंपलसरी। सो इज इट पॉसिबल कि अगर कोई लड़का अगर घर पे बैठ के अपना मतलब मेहनत करे, मेहनत से पढ़ाई करे, तो इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू क्रैक सिविल सर्विसेज? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज बीइंग अ क्लास ओनर, मैं यही ऑनेस्टली एक चीज बोलूंगा, क्लास से कोई हेल्प नहीं मिलता है। बीइंग भले क्लास ओनर, मैं एक चीजें क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ क्लास की मार्केटिंग करने आऊँ, मैं ऑनेस्टली ये चीजें बोलूंगा, क्लास से कोई हेल्प नहीं मिलता है। आप क्लास के बिना यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बिना गाइडेंस के बिना आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते। आपको गाइडेंस इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि दिस इज द राइट ट्रैक, यू कैन गो। यस सर। लेकिन क्लासेस क्या होती है, मैं सिंपल चीजें बताऊं, आपके क्लास में आप अभी कौन से स्टार्ट कर रहे हैं? आई पास माय 12th standard from Don Bosco College. ओके, 12th में आपके कितने परसेंटेज थे? इफ यू डोंट I माइंड। got 80%. 80%। आपके क्लास में कितने बच्चे थे? मेरी क्लास में अराउंड 60 जन थे। 60 लोग थे। या और किसी को 50-60 के रेंज में किसी को परसेंटेज है? यस सर। और किसी को 90 के रेंज में परसेंटेज है? यस सर, 85 वाज द लाइक फर्स्ट उससे रैंक। ऊपर भी है? यस सर, मैं 5th आया कॉलेज में। यस ओके, आपसे 4th, 3rd, 2nd, 1st वाले भी लोग थे, और नीचे 6, 7, 8, 9 टिल इन्फिनाइट जितने 60 बच्चे हैं वो Yes, लोग sir. भी थे। सिंपल लॉजिक था, टीचर्स जो थे आपके लिए भी वही टीचर्स थे। सपोज मेघा मैम भी आप ही के लिए, मेघा मैम ने आपको भी वही पढ़ाया जो बाकी लोगों को पढ़ाया। जिसको पढ़ना था उसने 1st रैंक लाया, आपने 5th रैंक लाया, जिसको नहीं पढ़ना था उसने नहीं पढ़ा। Yes, सिंपल लॉजिक। टीचर से यही हेल्प होता है, टीचर अपना काम करता है, टीचर ने आपको पढ़ा दिया कि बेटा दिस इज द राइट ट्रैक, आपको यहाँ पे आईपीएस की जॉब मिलेगी, लेकिन आपको जाना तो अकेले ही चल के, ना आपके माँ बाप साथ आएंगे, ना कोई भी टीचर साथ, आपको धक्का मारने वाले 50 लोग होंगे। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। लाइक हमको सर बोल दे केस भेटले असं काय बोल, 3 दिवस कोणाचं क्वारंटाईन असतं? एक सेकंड प्लीज, अनम्यूट, सॉरी म्यूट कर क्यों? म्यूट। हाँ हाँ बोलो जी। यस सर, आप कौन से लाइक आपका क्लासेस कहाँ पर है सर, आप मतलब बता सकते हो? आपके बिकॉज ड्रॉप कॉलेज में भी है। यस सर, एंड स्टिल आई विल गिव यू डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट माय क्लास। पूरे मुंबई में 8 ब्रांचेस हैं, आप Okay. कहीं भी जो सारी चीजें कर सकते हैं। आप पर्सनली आफ्टर दिस पैंडेमिक सिचुएशन आप मिल भी सकते हैं, लेकिन अभी ऑफिसेस चालू भी है। आई एम स्टिल लाइक मैं अपने ऑफिस में भी बैठा हूँ। नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र का अवार्ड भी है विद इन 2 years ऑफ ओपनिंग माई क्लासेस, बिकॉज क्योंकि नंबर 1 इंस्टीट्यूट इसीलिए मिला क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन मैंने अपने क्लासेस से दिए। क्यों? क्योंकि ये क्लास और डिफरेंट क्लास में एक ही चीज का फर्क है कि ओनर कोई और है और टीचर कोई और है। ओनर को पैसों से मतलब है और टीचर को पढ़ाने से, टीचर को भी अपने पैसों से मतलब है। गवर्नमेंट जॉब, मुझे सिचुएशन में जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनको सैलरी कट हो रही है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, जॉब से वेव ऑफ कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट जॉब में है, जैसे मेरी बात करूं तो 20% एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है घर बैठने। गवर्नमेंट जॉब इसीलिए क्यों करते हैं? एक आईएएस कैबिनेट सेक्रेटरी का जो आईएएस होता है, लालू प्रसाद यादव कितना पढ़ा लिखा है? 2nd फेल है, सेकंड। लेकिन उसके जो डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? एक आईएएस ऑफिसर लेता है। एक मोदी की भी बात करूं, मोदी जी की भी बात करूं, मोदी जी भले प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड देखा होगा तो 4 आईएएस बैठे रहते हैं जो उनको बताते हैं कि आपको ये डिसीजन लेने हैं, आपको ये लेना है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक आईएएस का फुल फॉर्म है। एडमिन सर्विस क्या काम है? डिसीजन ही लेना ना कि देश के लिए क्या करना है क्या नहीं। व्हाट इज व्हाट इज 7th पे कमीशन? इकोनॉमिक प्रोफेसर से पूछ लेना व्हाट इज 7th पे कमीशन। सर हाँ बोलो। सर, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के कितने टाइम के बाद हम लोग यूपीएससी देने के लिए एलिजिबल होते हैं? बेटा मैंने 3rd ईयर में एग्जाम दिया था, यूपीएससी का 1st अटेम्प्ट था, उसके बाद 2nd अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया। तो आप यूपीएससी का एग्जाम 3rd ईयर में रह के भी दे सकते हैं विद द एज लिमिट। अगर मैं बात करूं फॉर जनरल कैटेगरी 21 to 32 ये एज लिमिट है। अगर ओबीसी की बात करूं तो 35 ईयर एज लिमिट है। एससी एसटी की बात करूं तो देयर इज नो एज लिमिट। सर, प्रीलिम और मेंस एग्जाम दोनों में कट ऑफ रहता है उस हिसाब से, मतलब कैटेगरी वाइज कुछ कट ऑफ रहता है कि सबके लिए सेम रहता है? नहीं, मैं आपको चीजें बता देता हूँ। ये जो कट ऑफ वाइज चीजें सारी चीजें होती थी ना, ये बहुत पुरानी चीजें हो गई। कट ऑफ वाइज चीजें क्या होती है कि जब भी आप कोई कट ऑफ दे रहे हैं तो पहले जो सारी चीजों की सेम, वो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। पहले ये सारी चीजें होती थी कि किसी को 400 रैंक आ रहा है और किसी को 1st रैंक 2nd रैंक आ रहा है तो दोनों इक्वल बैठ रहे हैं। ऐसा अब सिचुएशन हट गया।
अब क्या होता है कि सपोज 1000 वैकेंसी निकली फॉर यूपीएससी क्लियरिंग के लिए 1000, सपोज 100 वैकेंसी निकली, 100 वैकेंसी, तो 100 में से ही फॉर जनरल के लिए कैटेगरी अलग हो जाएगी, 50 लोग जनरल वाले रहेंगे, 30 लोग रहेंगे, 30 लोग रहेंगे फॉर ओबीसी, 20 लोग रहेंगे फॉर एससी एसटी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एक 100 का एग्जांपल लिया, उस 100 में से 50 लोग रहेंगे फॉर जनरल एग्जाम्स, जनरल कैटेगरी, उसके बाद रहेंगे 30 लोग ओबीसी, 20 लोग एससी और 10 लोग पीडब्ल्यूडी मतलब हैंडीकैप पर्सन। तो ये सारी चीजें अलग हो गई। तो आपके हिसाब से क्या करना है, आपके लिए 50 ही वैकेंसी, तो आप सिर्फ 50 लोग के साथ ही आप कॉम्पिटिट कर रहे हो, और जो ओबीसी वाले हैं वो 30 लोगों के साथ ही कॉम्पिटिट कर रहे हैं, जो हैंडीकैप वाले हैं उनमें सिर्फ 10 लोगों की वैकेंसी है। तो ये सारी चीजें अब अलग हो गई। पहले बहुत मर्ज होता था, जिसमें अभी आप लोगों को पता होगा कि एक चीज मैं बता दूं, एससी एसटी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये चीजें इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट, सर इट्स नॉट क्लियर, तो पूना पैक्ट हुआ था एक गांधी जी और एक इनके बारे में अंबेडकर जी के बारे में, उसमें एससी एसटी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, लेकिन उसके बाद ओबीसी आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ओबीसी इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके बाद भी ओबीसी में रिजर्वेशन है, जिसके लिए आज भी मराठा मोर्चा होता है। ये एक मराठा मोर्चा हुआ था, अगर आप लोगों को सारी चीजें पता होगा तो मराठा मोर्चा हुआ था, वो उसीलिए हुआ था कि ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देते। तो यही चीजें है जो एससी एसटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसी के हिसाब से है कि अब सारी चीजें अलग हो गई हैं, तो सबको सेपरेट सेग्रीगेशन हो गया है। सर कोई ऑथराइज बुक वगैरह रहता है, जैसे एनसीईआरटी टाइप्स वगैरह कोई बुक रहता है कि लाइक अपने नॉर्मल टेक्स्ट बुक से रिलेटेड रहते हैं? एनसीईआरटीज होती हैं यूपीएससी में, आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना पड़ता है, जैसे कि जो बच्चे आर्ट्स के नहीं है उनको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप एसएससी में, एसएससी या एचएससी बोर्ड है, तो एनसीईआरटी इज वन इज द बोर्ड इन दिल्ली, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोर्ड के आपको कुछ सेपरेट, मैं अपने बुकलिस्ट या फिर किसी के भी बुकलिस्ट आपको चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि बुकलिस्ट, आप उनकी बुकलिस्ट फॉलो करना है। बट रिमेंबर वन थिंग, डू नॉट फॉलो एनी टॉपर्स, या किसी को भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हर एक का आईक्यू, हर एक के पढ़ने की कैलिबर अलग अलग होती है। मेरी पढ़ने की कैलिबर, मैं 10 घंटे बैठ के पढ़ सकता हूँ, तन्वी 5 घंटे बैठ के पढ़ सकती है, कि वो 2 घंटे में ही उतनी चीजें कवर कर सकता है। तो हर एक का कैलिबर अलग अलग होता है, तो जितना जो जिसका कैलिबर है वो उस हिसाब से पढ़ता है। एनसीईआरटी बेटा इज ए बोर्ड, एनसीईआरटी, नॉट एनसीईआरटी, इज एनसीई फॉर एलिफेंट, आर फॉर राहुल एंड टी फॉर तमिलनाडु, ठीक है। एनसीईआरटी करके है, तो उसकी सारी चीजें है। सर हाउ टू सिलेक्ट एन ऑप्शनल? हाउ टू सेलेक्ट एन ऑप्शनल, बेटा यूपीएससी में 2 ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है ऑप्शनल और सेकंड होता है आपका एसे। क्यों? आई विल कम बैक टू दिस, हाउ टू स्टार्ट अ प्रिपरेशन, मैं बताता हूं कैसे स्टार्ट करनी होती है। हाउ टू सेलेक्ट एन ऑप्शनल, सबसे पहली चीज एक बात बोलूं, यूपीएससी में 2 ही चीज अलग होता है। एक तो ऑप्शनल, देयर इज 24 टाइप्स ऑफ ऑप्शनल। आप लॉ को भी ऑप्शन ले सकते हैं, आप हिस्ट्री को ऑप्शन ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स को ले सकते हैं, मैनेजमेंट ऑप्शन ले सकते हैं, आपके किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्शन ले सकते हैं, जिसके 2 पेपर्स होते हैं, एक टियर 1, एक नॉर्मल पेपर होता है पेपर 1 एंड पेपर 2, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2, और एक होता है एसे। आपके टाइम्स में 10th में, 8th में, 7th में आप लोग के एक एसेज आते थे कॉलेजेस में, सॉरी स्कूल्स में, आप लोग एसे का एसे करते थे, एसे लिखते थे। तो उसमें होता था ना, माय फेवरेट पोएट, माय फेवरेट, उसकी एक हिंदी में आता था कि पेड़ की आत्मकथा, टाइप ऑफ एसेज, निबंध जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, वो सारी चीजें आती थी। तो सबका सोच अलग अलग होता है, तो आप अपनी अंदर की मेंटालिटी कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो आप पेपर्स में लिखेंगे। तो एक ऐसे और एक ये क्या बोलते हैं ऑप्शनल, यही 2 चीजों से आप अपने मार्क्स को खींच सकते हैं। ऑनेस्टली बोलूं तो ऐसे और ऑप्शनल, और ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करते हैं बेटा, ऑप्शनल वही लिया जाता है, ये नहीं लिया जाता है कि सपोज मैं इकोनॉमिक्स में ऑप्शनल ले रहा हूं तो मैं इकोनॉमिक्स मेरा सॉरी इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट कर रहा हूं या इकोनॉमिक्स से मास्टर्स कर रहा हूं तो मेरा इकोनॉमिक्स ही ऑप्शनल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट बशर्ते वो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट वाला हो।
जैसे सपोज कन्हैया को इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता है, बट कल्याणी को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उसमें एक ग्रेडिंग सिस्टम भी होता है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा बाद में वंस कॉलेज को, कि ग्रेडिंग सिस्टम, चलो अभी बता देता हूँ। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है कि वैकेंसीज उतनी शिफ्ट हो जाती है, जैसे सबसे ज्यादा ऑप्शनल लोग लेते हैं सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी के वैकेंसी जो एक फिजिक्स से पीएचडी भी किया रहता है ना, वो भी सोशियोलॉजी ऑप्शन लेता है, बिकॉज सोशियोलॉजी में लिख सकता है इंसान। एक मैथ्स में आप क्या लिखोगे, एक्टिव पैसिव वॉइस तो नहीं कर सकते ना, जो थ्योरम है वही थ्योरम है। इकोनॉमिक्स का जो भी सप्लाई और डिमांड है वही चीजें हैं, आप उसमें सारी चीजें हैं। व्हाट इज द सैलरी ऑफ यूपीएससी? बेटा यूपीएससी कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। यूपीएससी इज एग्जाम जो एग्जाम कंडक्ट करती है, सिविल सर्विस एग्जाम्स, एनडीए एग्जाम्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ एजेंट्स, ये सारे लोगों के एग्जाम कंडक्ट करती है। सिविल सर्विस एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं तो आप आईएएस और आईपीएस बनते हैं। एक आईएएस कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करूं तो उसकी सैलरी होती है 2,12,000 रुपए पर मंथ। 2 लाख सर? 2 लाख, 2,000 नहीं, 2,12,000। हाँ सर 2 लाख, क्योंकि बिकॉज मुझे लगा था कि 1 या 1.5 इतना था। तो स्टार्ट फ्रॉम 1,50,000 टू 2,12,000। बाकी और भी कमाई होती है, वो चीजें इधर डिस्कस नहीं करेंगे, वो चीजें बन जाना, खुद कमा लेना, वो सारी कमाइयों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैं ईमानदारी नहीं पड़ेगी। 2,12,000 कौन करप्टेड है कौन नहीं है वो मुझे लेना देना नहीं है। सर वन डाउन सर, यूपीएससी के बाद क्या क्या हो सकता है आपने बोला अभी सर? यूपीएससी क्या होती है? सपोज यूपीएससी ना के श्रॉफ कॉलेज है, ठीक है, जो के श्रॉफ कॉलेज। अब के श्रॉफ कॉलेज बीएससी के भी एग्जाम्स लेती है, बैफ की भी लेती है, बीएमएस की भी लेती है, सारी चीजें लेती है, ठीक है। तो यूपीएससी ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन सेंट्रल के लिए एक पब्लिक की सर्विस करने के लिए एक कमीशन फॉर्म हुई, वो सारी चीजें आपकी कमीशंस में एग्जाम्स कंडक्ट करेगी। वो एग्जाम में सिविल सर्विस एग्जाम होता है जिससे आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ये सब बनते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी भी यूपीएससी के अंडर आता है, सीडीएस भी यूपीएससी के अंडर आता है, और रॉ एजेंट जिसको बनना है, जो वो सारी चीजें होती है ना, रॉ एजेंट्स, आप लोग टाइगर जिंदा है वगैरह मूवीज देखते हैं, तो वो सारी जो एग्जाम्स होती है उसमें भी जो एग्जाम्स होती है वो भी यूपीएससी कंडक्ट करती है। आपको कोई बाहर की अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं, वो भी यूपीएससी कंडक्ट करती है। सर बोलो बोलो बोलो, गिव मी 1 सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। हाँ बोलो सर। अभी जैसे सर मुझे आईएएस बनना है तो उसके लिए तो यूपीएससी देना है, तो सर मैंने प्रिपरेशन 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट की है। तो सर एज पर स्कूल टीचर गाइडेंस सर ने बोला है कि लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट मेन मतलब स्टडी करके रखना है, जो मतलब पॉइंट्स वगैरह है वो। और सर मतलब 11th-12th मैंने शैलेंद्र से किया है आर्ट्स लेके ही, तो सर उस पे भी नोट्स बेसिस पे मेरे पास नोट्स मैंने मेक किया है। तो सर क्या एनसीईआरटी लेना जरूरी है? नहीं, मैंने वही बताया ना, एनसीईआरटी उनको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है जिनको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बेस नहीं है, हिस्ट्री के बारे में कोई बेस नहीं है, ज्योग्राफी के बारे में कोई बेस नहीं है। अगर आपने, और पहली बात पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी और पॉलिटिक्स, ये तीनों चीजें बहुत अलग अलग है, तो यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। पहली चीज है तो ये याद रखो। यूपीएससी में पॉलिटी होता है, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, गवर्नेंस होता है। यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस नहीं होता है। जिसने भी आपको गाइडेंस दिया होगा उसको आप ये गाइडेंस दे दो, जो भी टीचर होगा उसको आप ये गाइडेंस दे दो कि मैम यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस तो होता ही नहीं है, यूपीएससी में इंडियन पॉलिटी होता है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी होता है और 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जिसको बेसिकली अब पिलर ऑफ यूपीएससी बोलते हैं। जो 4 पिलर पे यूपीएससी कंडक्ट है। बट अगर यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर यूपीएससी क्लियर्ड बनने से अगर मुझसे बात करोगे आप, तो मैं एक चीज बोलूंगा, यूपीएससी के 5 पिलर होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट हो गया। और जो सबसे ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, दैट इज करंट अफेयर्स, जो कि सब बच्चों के लिए सबसे टफ टास्क होता है। यूपीएससी में अगर आप करंट अफेयर करके 67 क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी 2019 में बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, 67, और 67 का डबल कितना होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डबल ऑफ 67? 134 मार्क्स। आज तक यूपीएससी में कभी कट ऑफ गया ही नहीं प्रीलिम्स में,
67 आया है प्रीलिम्स, आप सारे सब्जेक्ट छोड़ दो, सिर्फ करंट अफेयर, देश दुनिया में क्या हो रहा है वही आपको पता है ना। तो वही चीज है, अगर मैं इधर किसी से भी पूछूं, कोई यहाँ पे कोई भी बंदा एक सिंपल सा लॉजिक पूछ रहा हूं, अगर कोई अगर बता दे मुझे आंसर, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स बात बता दो, हॉकी इज नॉट अ नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। चेस क्रिकेट, अरे भाई चेस, पहलवानी कर ले, फिर पहलवानी भी कर ले। कबड्डी। अब क्या बोलोगे सर? हॉकी ओनली। चेस डिक्लेयर नहीं किया है। चलो सर आप ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउनलोड कर रहे हो ताकि हम कंफ्यूज हो जाए सारे ग्रुप में शेयर करता हूँ थोड़ी देर बाद। ओके लिसन टू मी, सागर लिसन टू मी, ठीक है? फुटबॉल कुछ नहीं है, सबकी रिटायरमेंट एज बेटा 60 इयर्स ही होती है। हाँ, तो नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया फरवरी 2020 में एक ने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा था। तो इफ समवन ग्रेजुएट विद मेजर्स इन साइकोलॉजी, हाँ ठीक है, एक सेकंड बताता हूँ जिल, आपके पास आता हूँ। हाँ, तो नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में एक बंदे ने पूछा था सुप्रीम कोर्ट पे, तो उसने एक ही चीज बोला था कि देयर इज नो ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। अब दिस इज द टाइप ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन यूपीएससी एग्जाम। आप लोग 2020 ये सिर्फ डालना February based on the Supreme Court, what is the national sports of hockey? अब सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट अगर बोल रहा है कि there is no official national sports of a country, तो किसकी मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो there is no official national sports of a country। हाँ, तो कौन किसका क्वेश्चन पूछा था बेटा? चार्ट्स ना 99 प्लस हो चुके हैं, तो मैं चार्ट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे अनम्यूट करो और एक एक करके क्वेश्चन पूछो। आई एम ओके, 2 घंटे और चलेगा तो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, टाइम है। हाँ बोलो शुभम। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। हाँ बोलो, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। देखो, हाउ टू स्टार्ट अ प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, इफ आई क्वेश्चन यू बैक, हाउ टू स्टार्ट अ प्रिपरेशन फॉर बीएमएस एग्जाम्स। आप कौन से क्लास में हो शुभम? Shubham Thakur. F5F. F5F. How to start a preparation for BAF? Start studying the subject of F5F. सिंपल सा लॉजिक है, आपको स्टडी स्टार्ट करनी है। BAF का स्टडी है, यूपीएससी का स्टडी है, दोनों में पढ़ना ही है, दोनों में सब्जेक्ट्स वही है। थोड़े मतलब सब्जेक्ट्स अलग अलग है, BAF के सब्जेक्ट और यूपीएससी के सब्जेक्ट्स आर्ट्स से रिलेटेड है यूपीएससी में, बट आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी थीम पढ़ो, किसी के बारे में भी पढ़ो, आप सिंपली बुक्स उठाओ और पढ़ना चालू कर दो। सबसे पहले यूपीएससी में अगर पढ़ना है तो करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। ऑनेस्टली एक आंसर याद रख लो कि यूपीएससी में अगर करंट अफेयर में पकड़ है तो आप यूपीएससी का प्रीलिम्स या मेंस का इंटरव्यू आप सब चीजें आसानी से क्लियर कर लोगे, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस आपकी नॉलेज टेस्टिंग है, इंटरव्यू नॉलेज टेस्टिंग नहीं है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स है उसको पता है इस बंदे के पास नॉलेज है, इसलिए यूपीएससी जैसा एग्जाम का प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करके मेरे सामने बैठा हुआ है। अगर नॉलेज नहीं है तो यहाँ ऐसे कोई आयरा गरा सत्तू कोई ये छपरी इंसान यहाँ के नहीं बैठा हुआ है, उसके पास नॉलेज है इसलिए वहां पे इंटरव्यू में बैठा हुआ है। तो इंटरव्यू में उसने सीधा क्वेश्चन यही पूछ लिया कि बेटा व्हाट इज योर थॉट। क्यों? क्योंकि अगर एक आईएएस ऑफिसर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसको गलत करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक नॉर्मल सा हवलदार आपके सामने कभी भी आपको ट्रैफिक सिग्नल पे या कहीं भी पकड़ लेता है तो हालत खराब हो जाती है, कि जबकि आपको पता है वो कुछ नहीं करेगा, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो 200 रुपए का फाइन है, लेकिन एक हालत काप हो जाती है, हालत टाइट हो जाती है। तो सिंपल सा चीज है शुभम, अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो एक नॉर्मल सी लॉजिक है, एक करंट अफेयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, बाकी चीजों के लिए करियर एकेडमी है वो हेल्प कर देगी। खैर हाँ Sir, I have 2 questions. So, my first question is, I have chosen, I have decided to take my optional as account. Means मेरे को अकाउंट मैंने डिसाइड कर लिया, तो उसमें मैं स्कोर कर सकता हूँ। माइक ऊपर लो ना, कन्हैया तुम्हारा माइक थोड़ा ऊपर लो ताकि मुझे आवाज बहुत कम आए। ओके सर, सर मैंने डिसाइड कर लिया वैसे ऑलमोस्ट कि मैं अपना ऑप्शनल अकाउंट ही लेने वाला हूँ। तो अकाउंट बेटर है या नहीं है, स्कोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते?
अकाउंट से लेके बहुत सारे लोग यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अकाउंट से आप स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज है समझो कि अगर उस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ अच्छी है, अकाउंट्स हो या कोई, जैसे मेरा इकोनॉमिक्स था, बहुत लोग बोलते हैं कि शुभम तुमने इकोनॉमिक्स लेके गलत कर दिया, सोशियोलॉजी लेते तो क्लियर कर लेते, आज टॉप 100 में तुम्हारा नाम होता। लेकिन मुझे पता है कि मुझे सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, होता है ना, सबको अपनी अपनी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है। यूपीएससी में स्कोर आप कर सकते हो, लेकिन जो सोशियोलॉजी लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सोसाइटी डे टू डे लाइफ में आप देख रहे हो, अकाउंट्स आप डे टू डे 10 अकाउंटेंट के साथ आप डेली बैठ नहीं रहे हो। सोशियोलॉजी इज व्हाट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सोसाइटी, तो सोसाइटी को आप डेली मयूर, आई गेट बैक टू यू, बैंकिंग सेक्टर भी बता देता हूँ, आई गेट बैक टू इन 2 मिनट्स, मैं केवल का कन्हैया का क्लियर कर दूं, गेट बैक टू यू। हाँ, तो यूपीएससी में अकाउंट्स लो, लॉ ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अगर आपकी कमांड उस पर बहुत अच्छी है तो आप कोई भी एग्जाम सुकून से क्लियर कर सकते हो, दैट्स, उसमें कोई इशू नहीं है। सर आई हैव सेकंड डाउट, गिव मी 1 मिनट, कन्हैया का क्लियर हो जाए। हाँ ओके कन्हैया सर, ऐसे जनरल कैटेगरी, जैसे बोल रहे थे, ओके सर, जनरल कैटेगरी में हम लोग को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। ओके, तो सपोज मैंने प्री क्लियर कर लिया और मेंस में क्लियर नहीं कर पाया, अरे बाबा माइक ऑफ कर दो, नको तो सर काय माइक ऑफ करो, Participants, please switch. Mute yourself. कन्हैया 1 सेकंड, IND. Sir, Aresha, give me 2 minutes and I'm talking. All of you mute yourself. हाँ कन्हैया बोलो। I cleared pre and not able to clear mains. हाँ अब मनाली म्यूट हुई, हाँ बोलो अभी कन्हैया। सो सर, मैं मेंस में क्लियर नहीं कर पाया, तो मेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट प्री फिर से देना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली मेंस वापस से? अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो, 2018 में आई क्लियर्ड माय प्रीलिम्स, आई क्लियर्ड माय मेंस, मैंने इंटरव्यू ज्वाइन किया, इंटरव्यू में 3 मार्क्स से रिजेक्शन हुआ, 861 वाज द कट ऑफ, मुझे 858 मार्क्स मिले थे, 3 मार्क्स से मेरा रिजेक्शन हुआ इन 2018 यूपीएससी अटेम्प्ट, लेकिन 2019 में आई हैव टू स्टार्ट माय जर्नी विद प्रीलिम्स ओनली। अब मैंने प्रीलिम्स से ही जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन इस साल से मतलब 2019 से मोदी गवर्नमेंट ने एक चीज बोली है कि अगर आप प्रीलिम्स मेंस क्लियर करते हैं तो आपको कोई ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी, ये फैक्ट है। ओके सर, तो आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो आपके अटेम्प्ट्स कितने काउंट हुए थे? आप प्रीलिम्स भी अगर फेल होते हैं ना, प्रीलिम्स में दोनों सब्जेक्ट देके भी अगर आप स्कोर नहीं करते तो आपका एक अटेम्प्ट काउंट होता है। बट सर आपके केस में आपने प्रीलिम्स और मेंस क्लियर किया था बट आप इंटरव्यू नहीं कर पाए थे, तो आपके कितने अटेम्प्ट्स काउंट हुए थे? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ है। मींस जो आप क्लियर कर लेते हैं वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होता? होता है। मेरा पहला अटेम्प्ट वो था और सेकंड अटेम्प्ट 2019। 2018 में साल भर में एक ही बार एग्जाम होता है यूपीएससी का। ओके सर, 2018 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, चाहे इंटरव्यू हो चाहे प्रीलिम्स ही ना हो, वो काउंट होगा फर्स्ट। फिर 2019 में मैंने सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया। अब 2023 में मैं वापस दूंगा फॉर टॉप 100 आईएएस आईपीएस के लिए, क्योंकि आईएएस आईपीएस 482 में मिलेगा नहीं। सर आपको इस पर क्या मिला है? रेलवे अकाउंटेंट, जो कि मतलब नहीं है। ओके, ऑलरेडी जीएसटी इंस्पेक्टर की 75,000 की नौकरी है, क्यों 40,000 में जाऊं? 23 साल का तो हूँ, 23 का हूँ मैं, 24 हो जाऊंगा अक्टूबर में, तो अभी टाइम, तो अभी 23 का ही हूँ, तो कौन सी मेरी एज जा रही है? मेरे पास 6-8 अटेम्प्ट है, ओबीसी में आता हूँ, ओबीसी नहीं भी डाला हूँ तो भी 6 अटेम्प्ट है और 4 अटेम्प्ट बचा है, तो 23 में दूंगा, थोड़ा और अच्छे से प्रिपरेशन करके। सर व्हाट इज द वर्क ऑफ IND? IND फुल फॉर्म बताओ, IND का वर्क क्या होता है? इंडियन नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट। हाँ, इंडियन नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट। अच्छा, नार्कोटिक्स बेटा, ड्रग टेस्ट, डोप टेस्ट, ये सारी चीजें। यस अगर क्या बोल रहे हो? नहीं सर, डोप टेस्ट में ज्वाइन होने के लिए क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है? गांजा, कोकेन, ये जो सब नाम होते हैं वो सब जो अगर आप सप्लाई कर रहे हो विच इज इलीगल। वेप्स के बारे में IND बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, IND उतना ज्यादा फेमस नहीं हुई थी। वेप करके एक ड्रग्स होता था, इट्स जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिक सिगरेट, वो लोग कहीं पे भी बैठ के पीने लगते थे, उसके वजह से IND बहुत हिट हुआ, उसके वजह से IND कमीशन बनाई गई, एक अलग से नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट बनाया गया, उसके वजह से नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट यही चल लोगों की ट्रैक्स करती है, नार्कोटिक्स का काम ही यही है। सर आप कॉलेज में लेक्चर्स कंडक्ट करते हो?
हाँ बेटा करते हैं, लेकिन कोविड में अभी सबको कोरोना के डर से कॉलेज नहीं आ रहे, वरना कॉलेज में आते हैं। कॉलेज में हमारे बैच भी चलते थे अप्रोक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स के, मतलब 50-50 के 2 बैचेस चलते थे। सो सर आपका क्लास ज्वाइन करेंगे तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है? हाँ बेटा एक्स्ट्रा चार्जेस है, फ्री में करूंगा तो यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे दूंगा, रेंट कैसे दूंगा, थोड़े चार्जेस हैं। बट बाकी क्लासेस से ऐसा 3,27,000 या लाखों रुपए खर्च नहीं होते हैं, वो थाउजेंड्स में हो जाता है। आई विल शेयर यू द कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन टॉक टू माय असिस्टेंट एंड माय टेलीकॉलर, वो आप लोग को गाइड कर देंगे। आपको कुछ भी डाउट है तो मैं भी आप लोगों से पर्सनली बात कर सकता हूँ ऑन कॉन्टैक्ट कॉल पे। So what do you recommend as? Sir, can you suggest me what should I do after BAF in accounting sector to get bright future? CA बेटा अकाउंटिंग सेक्टर में आप ब्राइट फ्यूचर, भाई मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, मैं गवर्नमेंट सेक्टर बता सकता हूँ, अकाउंटिंग सेक्टर में क्या कर सकते हो वो मुझे नहीं पता। Sir, actually I'm not interested in CA, CS, MBA, law. So can you suggest me another? बेटा गवर्नमेंट जॉब में करना चाहो तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो भी पूछना चाहोगे तो मैं बता सकता हूँ। नहीं सर, एक्सेप्ट गवर्नमेंट जॉब, मुझे वो भी नहीं करना। तो बेटा मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब मुझे अच्छा लगता है, उसके अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं। और गवर्नमेंट जॉब के बारे में सब लोग मरते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब मिल गई उसके बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। सर मैं किसको कांटेक्ट करूँ? सर मैं किसको कांटेक्ट करूँ और जानकारी जानने के लिए? सर आपको गाइड कर देंगे। सर कैन यू जस्ट रिपीट? Resha, you can ask me. I am your class teacher also. But first of all, I would like to know from you. You try to search your area of interest. Okay. Just you have chosen BAF. It does not mean कि accounting के अलावा etc. We can have a meet, and we are there in career guidance, and we can contact Shubham sir and his assistant and other student. You just try to find out your area of interest. That will lead you to the best position and achievements. एक सेकंड से मुझे बैंकिंग सेक्टर के बारे में पूछ रहा है, मैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में बता देता हूँ। देखा बैंकिंग सेक्टर में ना एक सिर्फ मैं 2 एग्जाम्स बताता हूँ। एक SBI एग्जाम लेती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स। गिव मी 1 मिनट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक एग्जाम लेती है, और एक एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जाम लेती है वो IBPS। IBPS क्या है? जैसे इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या है? दिस इज आल्सो अ गवर्नमेंट बैंक। बट क्या होता था, जैसे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में, मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब मिल जाए या यूनियन बैंक में मिल जाए, किसी भी सेक्टर में जॉब मिल जाए, मैं कोई भी सेक्टर ज्वाइन कर लेता था। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम क्यों दूं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एग्जाम एक दिन हो गया और उसी दिन पे यूनियन बैंक का भी एग्जाम हो गया। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती थी कि मैं एग्जाम कौन सा दूं, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा दूं या इसमें दूं? और एग्जाम की फीस 100 रुपए लगती है। तो आप बोलोगे कि सर 100 रुपए कौन सी बड़ी बात है, 100 रुपए तो मैं वड़ा पाव और चाय पी के खत्म कर देता हूँ। मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं एक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक साल अप्लाई करने वाले अगर मैं सिर्फ 10,000 की बात करूं तो 10,000 into 100 कितना होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? 10,000 into 100 10 लाख रुपए होते हैं। 10 लाख 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। और हर साल 10,000 लोग अप्लाई भी नहीं करते हैं, ज्यादा अप्लाई करते हैं। और बैंकिंग की फीस है बेटा 500 रुपए। तो 500 रुपए ना गवर्नमेंट को फुकट फायदे हो रहे थे, और फुकट फायदे तो गवर्नमेंट के नजर में आ जाते हैं कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा फुकट 10-20 लाख रुपए। तो बैंक वाले क्या करते थे, हर 2 महीने में एग्जाम निकालते रहते थे। तो गवर्नमेंट का नजर आ गया ये फुकट 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं, कि लोगों को जॉब चाहिए। और आपके एक के जेब से 500 रुपए जाना किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन वो 500 लोगों को 10,000 लोगों को मिला दिया तो 50 लाख तो जो सामने वाला है उसको बहुत अच्छा लग गया। और अल्टीमेटली क्या होगा, वो 10 लोगों को जॉब दे देगा। और वैसे भी ब्रांचेस है तो जॉब तो देना ही है, फुकट पैसे आ गए। और इतने लोगों के पैसे मिला के उनको सैलरी देता था रिटायरमेंट तक, और बाकी जो इनकम होते थे बैंक के फायदे होते थे। तो 2014 से गवर्नमेंट ने ये चीजें चेन बना दी कि आपको जितने भी एग्जाम्स लेने हैं एक्सेप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो लोग क्या करोगे, वो लोग आप IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आप उनके एग्जाम दे। CT एग्जाम्स के बारे में बताता हूँ गंगा। हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आप इसका एग्जाम दे सकते हो। ये एग्जाम से क्या होता है, इसमें इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, जितने भी गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड बैंक है, प्राइवेट बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है वो इसमें आते हैं। वो लोग अपना एग्जाम, मतलब सारी चीजें वो एग्जाम लेते हैं, और जिसको जितने मैनेजर्स चाहिए वो दे देते हैं। अब बात करता हूँ कितने एग्जाम्स होते हैं। बैंकिंग सेक्टर में ना आपको 2 एग्जाम देने हैं और टोटल सब्जेक्ट्स हैं 3।
मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और थोड़ा सा करंट अफेयर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स। बाकी यूपीएससी वालों को ना बहुत ज्यादा करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है, बैंकिंग वालों को कम करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है। तो थोड़ा कम करंट अफेयर पढ़ा और नॉर्मल सी चीजें पढ़नी है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश। मतलब यूपीएससी का जो सीसेट आप पढ़ रहे हैं, उन सीसेट एग्जाम से आप पूरा का पूरा बैंकिंग एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वो एग्जाम क्लियर किया तो उसमें होता है प्रीलिम्स और मेंस, दैट्स इट। प्रीलिम्स दिया आप पास हुए, मेंस दिया पास हो, तो उसके बाद आपको पोस्टिंग कैसे मिलती है। बैंकिंग सेक्टर में होता है एक पीओ का एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है, एक ट्रेनिंग पीरियड। तो बैंक का अगर आपको मैनेजर बनना है तो मैनेजर मैं ऐसे ही बना दूं और एक बैंक में आप 10-20 हजार रुपए आप ट्रांजेक्शन करते हैं और ऐसे 100 लोग आते, आप अगले दिन बैंक के सारे पैसा लेके दुबई भाग गए। विजय माल्या, नीरव मोदी, इन लोग का नाम ले लें, इन लोग का नाम क्या किए, बैंक सेक्टर्स में इन्होंने क्राइम्स कर रखा है, भाग गए। और इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से बात करूं तो आप यहां से चोरी करके आप बिहार चले जाओ तो बिहार गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा कि क्या चीजें करनी है। सीबीआई जांच ऑन करंट इश्यूज बात करता हूं जो कि हर एक के जबान पे है। सुशांत सिंह के बात की बात करूं, सीबीआई इश्यूज क्यों हो गए, क्योंकि सेंट्रल से वो फोर्स आई, बिहार गवर्नमेंट को क्यों नहीं कुछ करने मिला, क्योंकि वो बिहार है, वो महाराष्ट्र है, स्टेट अलग अलग है। बिहार गवर्नमेंट को अगर कुछ करना है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की चीजें करनी है, तो ये सारी चीजें होती थी। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर्स में आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑप्शनल फॉर यूपीएसई, it's not UPSE, it's UPSC, C for civil service, it's not E for exam नहीं होता है, वो civil service exam होता है, that is CSE, UPSC होता है। ठीक है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ पहले बैंकिंग। ठीक है, उसमें होता क्या है कि आपको बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी होता है, उसमें 3 एग्जाम्स होते हैं। इसलिए 3 एग्जाम होते हैं क्योंकि यूपीएससी का बैंकिंग एग्जाम्स का जो प्रीलिम्स और मेंस होता है, ये दोनों का दोनों एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। और अगर मैनेजर है, आप किसी भी बैंक के मैनेजर से बात करो, किस प्रोफेशनलिज्म अगर आपको सीखना है तो आप उनके बैंक के मैनेजर से बात करो, कितने प्रोफेशनल वे से बात कर रहे हैं। इसीलिए प्रोफेशनली वे से बात करते हैं क्योंकि वो उनको पता है कि सामने वाले बंदा भी अगर नॉलेजेबल है तो वो प्रोफेशनल गुड आफ्टरनून सर मैडम करके ही बात करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर किसी रोड साइड छपरी ने जय माता दी करके प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर लिया और बैंक का मैनेजर बन गया तो क्या होगा, और बैंक के मैनेजर में जाएंगे और बोलेंगे अरे तू इधर आ, तू क्या कर रहा है, तेरा बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है। अगर तू तड़ाक करके बात करेगा तो आप उस बैंक में अकाउंट खोलोगे, उस बैंक में जाओगे, नहीं जाओगे, क्योंकि आपको इज्जत नहीं मिल रही। तो यही इशू से इंटरव्यू होता है पीओ के लिए, मतलब मैनेजर्स के लिए। और बैंकिंग में 4 ऑफिसर्स होते हैं, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, दैट्स इट। स्केल 1 के ही आप नॉर्मल एग्जाम दोगे तो आप स्केल 1 ऑफिसर्स बनते हो, उसके बाद आपको इंटरनल प्रमोशन या इंटरनल एग्जाम देके आप ऊपर जाते जाओगे। ठीक है सर, मुझे ये पूछना था, लास्ट डाउट, हाँ 1 सेकंड, रेडिंग बैंकिंग, फिर पीओ हो गया, पीओ खत्म हुआ, उसके साथ साथ होता है आरआरबी विच इज रीजनल रूरल बैंक, गांव सेक्टर में अगर आपको एग्जाम चलना है। और एक होता है क्लर्क। क्लर्क का मतलब क्या होता है, एक बैंक में जो कैशियर होता है उसको हम क्लर्क बोलते हैं। ठीक है, क्लर्क मतलब मैं चपरासी की नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वॉचमैन नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्लर्क, अ नॉर्मल पर्सन जो कैशियर होता है। उसमें इंटरव्यू नहीं होता कि अभी आप कैश डिपॉजिट करने जाते हैं, आप चेक क्लियरिंग के लिए चेक डालने जाते हैं तो आप उनसे पूछते हैं बेटा आपका नाम क्या है, सर आपका नाम कौन है, आप क्या हो, कुछ बात नहीं करते। लेकिन मैनेजर से आप बात करते हो, इसलिए मैनेजर्स के लिए इंटरव्यूज होते हैं और इसमें नहीं होते हैं। तो सेम चीजें होती है। आरबीआई के लिए बेटा बहुत डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं। आरबीआई की सैलरी स्टार्ट फ्रॉम 14 lakhs, 14 lakh, नॉट फॉर मंथ, इट्स फॉर ईयर। 14 लाख रुपए सैलरी होती है आरबीआई की। ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए एग्जाम। सर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ अपना, एंड आई एम ऑप्टिंग फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम। तो पहले तो मुझे स्केल 1 के लिए जॉब मिलेगा, तो वाइल माय जॉब मुझे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंटिन्यू करना पड़ेगा स्केल 2 के इंटरनल प्रमोशन के लिए, जैसे बैंक में इंटरनल प्रमोशन की एग्जाम होती है। वाइल ग्रेजुएशन, उसके बाद आगे क्या बोले विष्णु? हिरेन सर, हिरेन बोलो। मुझे सपोज मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम दिया, एंड देन आई गॉट अ जॉब इन बैंक। ठीक है, फिर मुझे स्केल 2 पे जाना है, सो आई हैव टू क्लियर इंटरनल प्रमोशन एग्जाम, जो भी बैंक निकालती है उनके प्रमोशन के लिए, इंटरनल प्रमोशन के लिए। तो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है ना, कि उसके लिए फिर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा अपना? नहीं, कोई अलग से वापस ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है, अंदर से पोस्ट ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है। देखो आईबीपीएस और एसबीआई ना 2 एग्जाम निकालती है अलग अलग, अगर ग्रेजुएशन के टर्म्स में बात करो।
बैंकिंग सेक्टर में मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन से जाएंगे तो आप प्रोविजनरी ऑफिसर बनेंगे, लेकिन अगर आपका मास्टर्स या एमबीए ये सारी चीजें हो गई हैं तो आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनेंगे। स्पेशलिस्ट ऑफिसर वो ऊपर होता है, डायरेक्टली स्केल 3 के ऑफिसर्स की बात करूं, स्केल 2 या स्केल 3 की बात करूं तो स्केल 2 स्केल 3 पे ना बहुत ऊपर, उसमें एसओ के एग्जाम्स होते हैं, तो आप मास्टर्स के बाद ही दे सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल आप उसमें एग्जाम्स होते हैं, JIICD करके एग्जाम होता है कुछ, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, जो बैंक इंटरनली है फॉर इंटरनल पर्सन, मतलब जो ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर्स में है उनके एग्जाम लेते हैं, ओपन फॉर एवरीवन नहीं होता है वो एग्जाम। जे से करके कुछ फुल फॉर्म है, JN कुछ है, मैं चेक करके बता दूंगा। वो इंटरनली एग्जाम्स होते हैं। जैसे आप ऑलरेडी मैनेजर्स हैं तो मैनेजर्स तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लाखों ब्रांच है और लाखों मैनेजर्स हैं, तो उन लाखों के लिए एग्जाम्स होंगे, फिर वो स्केल 2 ऑफिसर्स बनते हैं, फिर स्केल 3 और स्केल 4, फिर धीरे धीरे जैसे आपका प्रमोशन हो, जैसे स्केल 2 क्या होता है, आपके अंदर 6 ब्रांच आ जाएगी, आप 6 ब्रांच के इसके मैनेजर हो जाएंगे। फिर स्केल 3 आपके अंदर पूरा डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर आ जाएगा। स्केल 4 आपके अंदर पूरा स्टेट के मैनेजर्स आ जाएंगे। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है। इंटरनल एग्जाम देके आप जा सकते हैं, देयर इज नथिंग आपको एक्स्ट्रा पोस्ट ग्रेजुएशन करने की जरूरत है। हिरेन सर कोई स्टैटिस्टिक्स में कोर्स है? एक सेकंड हिरेन, यू ओके? डाउट क्लियर हो गया? Yes sir, I wanted to ask you. हाँ ओके, थैंक यू। हाँ विष्णु, Yes, कौन sir. बोल रहा है? विष्णु, अक्षय कौन है? जीत भट्टाचार्य सर एसपी के लिए कितना अटेम्प्ट होता है सर? बोलो कौन बोल रहा है? सर आरपीएससी डीएसपी एग्जाम कंडक्ट करवाता है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है किसी की। सर व्हाट इज द सैलरी ऑफ क्लर्क? क्लर्क की सैलरी बता, 45-50 से स्टार्ट होती है। सर आरपीएससी डीएसपी एग्जाम डायरेक्ट करवाता है क्या? जैसे एसआई का होता है ना डायरेक्ट एग्जाम आरपीएससी के थ्रू, वैसे डीएसपी या डीवाईएसपी का होता है क्या? बताया तो होता है एग्जाम आरपीएससी में। ओके, आरपीएससी करवाता है डीवाईएसपी का। ओके यस सर कोई स्टैटिस्टिक्स में करियर होता है गवर्नमेंट के लिए? स्टैटिस्टिक्स में करियर होता है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है। फॉर दैट यू हैव टू गिव स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। ओके सर। सर ये बैंकिंग के एग्जाम्स कब कंडक्ट होते हैं? साल भर में 3 बार कंडक्ट होता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग एग्जाम साल भर में 2 बार कंडक्ट होता है, पर 3 बार इसलिए क्योंकि एक आरबीआई भी एग्जाम लेता है। और मैं बात करूं तो एसबीआई एक बार पीओ का वैकेंसी निकालेगी, एक बार क्लर्क की निकालेगी, सबके अलग अलग एग्जाम, पीओ के लिए अलग एग्जाम, क्लर्क के लिए अलग एग्जाम, आरआरबी के लिए अलग एग्जाम, आईबीपीएस भी अलग एग्जाम निकालेगी 3, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। और सेपरेट बैंकिंग, जैसे ड्यू टू दिस सिचुएशन बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ने अपने बच्चों को, या फिर बहुत सारे हस्बैंड ने अपनी वाइफ को, या वाइफ ने अपने हस्बैंड को, या फिर बच्चों ने अपने पापा मम्मी को जॉब पे जाने के लिए मना कर दिया, या लोगों ने खुद ने अपने जॉब पे नहीं गए, क्यों? इस डर से कि कोविड सिचुएशन की वजह से ऑफिस नहीं जाना। तो अब बैंकों को तो क्राइसिस होगी, तो बैंक क्या करती है, मैंने एग्जाम निकाल दिया, आप घर बैठे बैठे एग्जाम दे दो, एग्जाम क्लियर करके मेरे आओ ऑफिस में। यस सर, मुझे ये पूछना था, लाइक मेरे मॉम डैड दे बोथ आर एडवोकेट्स। हेलो आप जी थोड़ा जोर से बोलो। मेरी आवाज आ रही है सर? Perfect. Yes sir. My mom dad they both are advocates. They are practicing in high court. So sir they suggested me कि like if I do law 12th के बाद, so it will be a base for me to crack civil services because most of the question they are based constitutional, they are based. So is it like that कि law किया तो like sir UPSC के लिए बहुत अच्छा ये support मिलता है? देखो GS2 जो होता है यूपीएससी में, जो मेंस में GS2 होता है, जैसे मैंने बताया 9 पेपर्स होते हैं, ज्यादा डिटेल में जाएंगे क्योंकि वो बहुत बोरियत का काम है, क्योंकि यहाँ बैंकिंग वाले भी हैं तो मैं ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन GS2 होता है, जो GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर आप लॉ कर रहे हो, जैसे मैं भी फर्स्ट ईयर लॉ कर रहा हूँ अभी, तो लॉ करने से क्या होगा, आपको क्या हेल्प मिलेगी कि लॉ करने से आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, ये सारी चीजें लॉ बहुत अच्छे से हो जाएंगे, आर्टिकल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज लॉ इज व्हाट, प्रॉपर्ली आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है जी, तो आपके अंदर लॉ बैठ गया तो आपका GS2 बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन GS1 जो हिस्ट्री में बहुत अच्छा, हिस्ट्री उसको ये एंशिएंट ढूंढना, ये सारी चीजें जो करते हैं हिस्ट्री में, उसको बहुत अच्छा लग जाएगा, तो उसके लिए GS1 अच्छा जाएगा, तो आपका GS2 बहुत अच्छा जाएगा। आप किसी एक सब्जेक्ट से आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते, एक सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक वीक सब्जेक्ट से आप जरूर यूपीएससी क्लियर कर सकते, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से आप नहीं कर सकते। So what you suggest, like normal graduation after that 3 years law or like 12th के बाद किया तो?
देखो 12th के बाद देना था तो अब आपको फॉर्म भर देना चाहिए था। हाँ सर, मैं फॉर्म फिल कर दिया हूँ, अभी लिंक ओपन हुआ था सीईटी का, वो फिल कर चुका हूँ, बट लाइक नॉर्मल बीए में एडमिशन केईएस में ही लिया है सर। सो लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन 3 years का बेटर है, सो लाइक हिस्ट्री एंड ऑल सब्जेक्ट्स विल गेट। देखो अगर आपको यूपीएससी जाना है जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको यूपीएससी जाना है तो आपको 3 साल में आपको यूपीएससी 3 साल के अंदर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। यस सर। ठीक है, अगर आप लॉयर की जाओगे तो आपको 5 साल में यूपीएससी की डिग्री मिलेगी। ठीक है, सॉरी ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी 5 साल में। आप सिविल सर्विस एग्जाम तीसरे साल से दे सकते हो। यस। तब तक शायद आप तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल आप थर्ड अटेम्प्ट दे रहे रहोगे। अगर आपका दोनों अटेम्प्ट नहीं हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वर्स्ट सिनेरियो। लेकिन अगर आप लॉ ऑप्ट करते हो और आपको करियर देख रहे हो सिविल सर्विस के हिसाब से, तो आप 5th ईयर से देना चालू करो। 5th ईयर से तो आपको अगर सिर्फ पॉलिटी पढ़ना है तो आप 1 साल में पूरी पॉलिटी पढ़ सकते हो, तब भी आपके पास 1 साल बचेगा। ओके, समझ रहे हो? यस सर। हाँ सर, यूपीएससी में एससी कैटेगरी के लिए कितने अटेम्प्ट्स होते हैं सर? नो अटेम्प्ट लिमिट ब्रो, नो अटेम्प्ट लिमिट। एससी एसटी नो अटेम्प्ट लिमिट। शुभम, आईबीपीएस के लिए प्रिपरेशन कैसे करने का? किसके लिए? आईबीपीएस के लिए। आईबीपीएस? हाँ, आईबीपीएस बताया तो, आईबीपीएस के लिए बैंकिंग एग्जाम्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शंस, उसके एग्जाम्स होते हैं। उसमें आपको क्लियर करने के लिए इतना ज्यादा कुछ नहीं है। नॉर्मल एक बैंकिंग एग्जाम है, 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तीनों के तीनों सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस में आते हैं और एमसीक्यू बेस्ड है। सिंपल सा लॉजिक है, एमसीक्यू बेस पे आपके एग्जाम्स होंगे, दैट्स इट। सर मतलब क्लासेस करने की जरूरत है कि ऐसे हो जाएगा? मतलब मैंने वही बताया जो मुझे स्टार्ट में किसी ने क्वेश्चन पूछा था, क्लासेस आपको हेल्प नहीं करती है, आपको गाइडेंस की जरूरत है। मैंने भी कोई क्लास नहीं चालू किया था, मैंने क्लास इसलिए चालू किया क्योंकि जब मैं किसी क्लासेस में गया था तो मुझे बोला गया था सर आपकी फीस 80,000 रुपए है यूपीएससी के लिए। तो मैं बोला 80,000 कहाँ से लाऊं, घर जो भी कुछ नहीं है, मैं किडनी बेचनी पड़ेगी 80,000 रुपए के लिए। पापा की नौकरी थी 13,000 रुपए, 80,000 लाऊंगा कहाँ से? मैं बात कर रहा हूँ 6 साल पुरानी, अब तो वही चीज 1.5 लाख रुपए हो गई, तो मैं 1,80,000 लाऊं कहाँ से? क्लासेस इसीलिए खोल दिया ताकि गरीबों की हेल्प हो जाए। यहाँ मैं कोई कमाने नहीं बैठा हूँ, बस इसीलिए बैठा हूँ कि जो रेंट होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, जो यूपीएससी क्लियर करके इतनी मेहनत कर चुके हैं कि क्लियर कर सकते हैं, लेकिन फिर ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन से क्लियर नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पे आए, पढ़ाएं, थोड़ा अपना फैमिली भी सपोर्ट कर रहे हैं। इतनी नॉलेज है, नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। आप कभी भी अपने प्रोफेसर्स को कोई चीजें पूछते हैं, फटाक से क्यों बता पाते हैं? क्योंकि वो उसी फील्ड में 10 साल, 15 साल, 2 साल, 10 साल से उसी फील्ड में, और आपके पेरेंट्स भी उतने नॉलेजेबल है, लेकिन वो पेरेंट्स किस फील्ड में है? दूसरे फील्ड में। जैसे आपके प्रोफेसर्स हैं, आपके प्रोफेसर्स आपके लिए प्रोफेसर है, उनके बच्चों के लिए तो किसी पेरेंट्स के लिए वो शायद और अच्छे से गाइड कर पाएंगे पढ़ाई के मामले में। किसी के मॉम डैड राशन की दुकान कैसे चलाते हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। किसी के मॉम डैड एक बिजनेसमैन कैसे बनना है वो अच्छे से बता पाएंगे। एक प्रोफेसर एजुकेशन अच्छे से दे पाएगा अपने बच्चों को, क्योंकि वो खुद ही प्रोफेसर है। सिंपल सा लॉजिक है। तो स्टार्ट करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त या पंडित जी आके बताएंगे कि बेटा मंडे आपके लिए शुभ मुहूर्त है, एक समोसे के साथ लाल चटनी मिला के खाओ तो आपका शुभ दिन होगा, एक यज्ञ करना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक सिंपल सा लॉजिक है, बुक उठाओ और पढ़ना चालू करो और सिविल सर्विस की तैयारी करो या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करो। एक चीज है हमेशा जिंदगी में याद रखना कि आज जो आपके पास है ना, अगर आप आज की जिंदगी 1 साल भर, एक 1 ईयर की बात कर रहा हूँ, बहुत वर्स्ट सिनेरियो, 1 साल अगर आप सैक्रिफाइस कर दिए तो जिंदगी भर सुकून से बैठ के खाओ। आज मेरे पास गाड़ी है, किसी के साथ जाना है, कुछ भी करना है, सब कुछ इसलिए है क्योंकि मैंने सैक्रिफाइस की 1 साल। तो अभी आपके ऑनलाइन लेक्चर चालू है यूपीएससी से रिलेटेड? यस, ऑनलाइन लेक्चर्स इज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, बिकॉज अब सब चीजें ऑनलाइन हो गई है तो हमें भी ऑनलाइन स्टार्ट करना पड़ा है। अगर इसमें से 4-5-6 तो ऑनलाइन फ्रेश बैच फॉर यूपीएससी, वैसे तो 1-2 दिन पहले ही चालू हुआ था, अभी आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट हाँ कुछ दिन पहले मेरा फोन टूट गया है तो इसलिए मुझे एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है कि कितने दिन पहले से चालू हुआ है। बट आई विल शेयर यू द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ माई असिस्टेंट राहुल और मिनल मैम, जो कि आपको बहुत अच्छे से, मिनल मैम को बहुत लोग जानते नहीं है, तो वो लोग का कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको शेयर कर लूंगा। वो लोग से आप अच्छे से कॉन्टैक्ट में आप बात कर सकते हो कि व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर, व्हाट इज द सारी चीजें। बट इतना चीजें हैं कि आपको कोई लाखों या 50,000 रुपए खर्च नहीं करने हैं, उतना महंगा क्लास नहीं है। एंड देयर इज ऑल्सो इंस्टॉलमेंट सर्विस, देयर इज स्कॉलरशिप, बहुत सारी चीजें मैं करता रहता हूँ। आपके क्लासेस का नाम क्या है?
करियर एकेडमी, आप ब्रोशर थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते तो उसमें मेरे क्लासेस का लोगो एंड नाम भी लिखा था। डिफेंस के लिए क्या गाइडेंस दे सकते हैं आप? डिफेंस के लिए बेटा देखो, डिफेंस में जाने के लिए ना 2 ही ऑप्शन है, आइदर एनडीए आइदर सीडीएस। आप साइंस बैकग्राउंड से हो या नॉर्मल कॉमर्स से हो तो आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। 10+2 क्या था? साइंस था, कॉमर्स था? कॉमर्स। आप सिर्फ इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, आप एयरफोर्स और नेवी नहीं ज्वाइन कर सकते। आर्मी में जाने के लिए आप एनसीसी स्पेशल एंट्री से जा सकते हो, ठीक है, सीडीएस के थ्रू जा सकते हो, और तीसरा आप आर्मी भर्ती है जो निकलती है उसमें जा सकते हो। और हेलो, नहीं सर मुझे एनसीसी का नॉलेज और आर्मी डायरेक्ट भर्ती का तो मुझे पता है, लेकिन सीडीएस के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। तो आई शेयर यू माय असिस्टेंट कांटेक्ट डिटेल। सीडीएस के बारे में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स मेंस, इंटरव्यू नहीं होता है, प्रीलिम्स मेंस होता है, वो 2 एग्जाम्स होते हैं बेस्ड ऑन एमसीक्यू, वो एग्जाम देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। Shubham sir, I also have one doubt. Last year in the month of June 2019, one reservation was introduced by central government, economically weaker section, and the order says 10% reservation in admission and job in central government and in that particular state. So yes. I just wanted to know, is there any age relaxation in UPSC or any particular state exam, civil services exam? Based on age relaxation for economic weaker sections? Yes. Okay, there is no age relaxation in such for the UPSC as per as best of my knowledge. और दूसरी चीज सर, अगर मैं आपको बोलूं तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कैटेगरीज डिफाइन किया हुआ है, अलग अलग स्टेजेस से डिफाइन किया हुआ है। जैसे दिल्ली में एक शुभ्रा रंजन सर की क्लासेस चलती है फॉर यूपीएससी, वहां पे कोई भी एग्जाम नहीं ले सकता। आफ्टर ये जून उन्होंने स्टार्ट किया था। शुभ्रा रंजन सर का एक ही है कि अगर किसी की एनुअल इनकम 1,20,000 से कम है, एनुअल इनकम आप टॉकिंग, मतलब एक परिवार अगर 10,000 रुपए उसके डैड मॉम मिलके कमा रहे हैं, एक पेरेंट्स, या खुद वो अकेला रह रहा है तो 10,000 रुपए कमा रहा है, तो वो उनको फ्री में पढ़ाएंगे। सर मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस यस। शिवम तुम्हारे फिर माइक में कुछ इश्यू होगा, आई कांट हियर यू। शिवम तुम अपना तो देख लो स्पीकर, ठीक है। तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर 1,20,000 के नीचे है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा। और इस साल आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स उनके क्लास से 77 स्टूडेंट्स ने यूपीएससी पास किया है। तो शुभ्रा रंजन सर का यूपीएससी में पकड़ इतना अच्छा है। और यूपीएससी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जस्ट लाइक अ रिजर्वेशन है, लेकिन एक एज रिलैक्सेशन नहीं। रिजर्वेशन दे दिया है जस्ट लाइक एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन है, वैसे एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन दिया है। और एज पर वुमेन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, रिजर्वेशन भी नहीं आया हुआ यूपीएससी में। लेकिन हाँ, फीस रिलैक्सेशन है। जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए यूपीएससी की फीस 100 रुपए होती है, वुमेन के लिए फीस 0, कोई फीस नहीं। फॉर्म भरो तो पास फेल कुछ नहीं जा रहा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आरपीएससी का जो पीएसआई का एग्जाम होता है ना, उसमें ओबीसी की कितने अटेम्प्ट्स अपन दे सकते हैं और एज लिमिट क्या है? बेटा आरपीएससी ना राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है कि ओबीसी का कितना रिजर्वेशन होता है उसमें, उतना ज्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आरपीएससी इफ यू टॉक अबाउट एमपीएससी तो मैं बता सकता हूँ। आरपीएससी के बारे में बेटा आई हैव टू रिसर्च, क्योंकि मैं गलत नॉलेज नहीं दे सकता। मुझे उसके आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस ना मैंने कभी दिया ना, उसके बारे में ज्यादा इंक्वायरीज आती है, तो उतना मुझे पता है। इफ यू टॉक अबाउट एमपीएससी तो मैं ज्यादा आपको अच्छे से बता पाऊंगा। राजस्थान के बारे में उतना ज्यादा नहीं पता है, बट इतना बता दूं तो ज्यादा फर्क इसी चीज के लिए पड़ता है कि एक यूनियन में आपको, जैसे कि मंगल पांडे, बहुत लोग सुने होंगे मंगल पांडे, भगत सिंह का नाम, तो इनकी बैकग्राउंड यूपी से होती है, उत्तर प्रदेश से होती है, ठीक है। और एक शिवाजी महाराज की बात करो तो महाराष्ट्र से होती है। तो अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो इन दोनों के बारे में पढ़ना है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हैं तो आपको शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ना है, नॉट अबाउट मंगल पांडे और भगत सिंह। तो एज लिमिट भी आइडिया है? एज लिमिट सूरज आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट आरपीएससी की, उसमें क्या है। मिनिमम एज लिमिट 21 है, ये मुझे पता है आरपीएससी का, बट उसके अलावा मुझे राजस्थान के बारे में कोई आइडिया नहीं। ठीक है। Could you please guide us regarding the most scoring subjects as optionals? एक सेकंड, कौन बोल रहा है? थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सुना नहीं। Sir, could you please guide us regarding the most scoring subjects as optionals for UPSC? There is no scoring subject as such for the optional की अगर मैं बात करूँ तो कोई scoring subject नहीं है, लेकिन recommended subject. Sorry? Your recommended subject maybe.
इकोनॉमिक्स और देखो मुझे तो इकोनॉमिक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट पर्सनली मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं इकोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। लेकिन अगर मैं नॉर्मल चीजों की बात करूँ इकोनॉमिक्स के अलावा, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके ऊपर उसका कमांड बहुत अच्छा है तो आप किसी भी सब्जेक्ट पे आराम से स्कोरिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब आपके हिसाब से आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, ओके। आई लव इकोनॉमिक्स। आई एम सो ग्लैड इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं। प्रिंसिपल मैम को भी बहुत पसंद है इकोनॉमिक्स। आपका भी मोस्ट डायनेमिक एंड सच अ ग्रेट सब्जेक्ट इट इज एन अमेजिंग सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक्स क्यों अच्छा लगता है मेरा, मैं आपको बताऊं। इकोनॉमिक्स जैसे हर एक के लाइफ में ना एक पर्सनल सब्जेक्ट होता है कि भाई इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लग रहा है, इकोनॉमिक्स इसलिए। आपके कोई दोस्त होगा जिसको इकोनॉमिक्स बहुत टफ लगता है। आई हैव मेनी, ऑफ कोर्स है, काफी है। मैथ्स बहुत टफ लगता है। जी जी। सर कैन आई गेट ई सर्टिफिकेट इफ आई लीव नाउ? मेगा मैम से बात करो बेटा, मुझे नहीं पता। yes you will definitely get don't बेटा जिसको जो है वो ई सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हो, तो ई सर्टिफिकेट इतना ज्यादा, आज 10 सर्टिफिकेट 50 सर्टिफिकेट, उसका कुछ इतना वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है। हाँ, यस। हेलो सर। यस। हाँ, एक सेकंड मैं अमीरा का क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आई विल कम बैक टू यू नितेश, ठीक है अमीरा? हाँ, तो सब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, बट आपके मनपसंद जो सब्जेक्ट है ना, आप उसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हो। जैसे मैं अगर बोलूं कि बेटा सोशियोलॉजी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपका मन नहीं है लेकिन आप फिर भी सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आप क्या स्कोरिंग कर पाओगे? आपका इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग है। ऐसा लाइक सर इवन पेरेंट्स सजेस्ट कि मे बी हिस्ट्री लो एंड सोशियोलॉजी लो, दीज आर काइंड ऑफ स्कोरिंग सब्जेक्ट, बिकॉज शायद सुना है लोगों से, तो इसीलिए अभी भी उसमें डाउट में है, कॉन्फ्लिक्ट में है कि विच वन शैल आई कंटिन्यू विद, और फोकस ज्यादा किस में रखना चाहिए एज एन ऑप्शन। तो वही मैं बोल रहा हूँ अमीरा कि एक ही ऑप्शन है कि पवन, एक मिनट माइक ऑफ करो। हाँ मेरा तो एक ही चीज है कि पेरेंट्स जैसे बोल रहे हैं हिस्ट्री लो, सोशियोलॉजी लो, इसलिए है ना कि जैसे हिस्ट्री है हमें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है, सोशियोलॉजी है हमें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है, हम प्रैक्टिकली चीजें देखते हैं। इकोनॉमिक्स के बिना देश नहीं चल सकता, लेकिन बहुत कम लोग इकोनॉमिक्स को एज इन देखते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स को चीजें होती है, इकोनॉमिक्स क्या है चीजें। इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकली ज्यादा लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, क्या डिमांड सप्लाई कर करके तो पूरा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता है। डिमांड एंड एंड्स विद सप्लाई खत्म हो जाता है, हर एक चीज में डिमांड सप्लाई घुसा देते हैं। तो यही चीजें होती है। इकोनॉमिक्स इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट, अगर मैं बोलूं तो इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में तो ही आप इकोनॉमिक्स लो, वरना जो आपको मनपसंद है ऐसा कुछ नहीं है। सर जैसे आई हर्ड मेनी पीपल से जो कहते हैं कि कुछ सब्जेक्ट है जिसमें काफी लिखना होता है, सो इट माइट नॉट बी वेरी इजी, काफी मगिंग अप है कुछ सब्जेक्ट्स, एंड देन दे से इकोनॉमिक्स में इट्स लाइक जस्ट पॉइंट टू पॉइंट, आई मीन वेरी different opinions we get. So as per you what might be the right opinion? किस तरह से हमें सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए? Just as a liking? Maybe की बात करो तो देखो यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है उसमें लिखा रहता है राइट द आंसर इन 250 वर्ड्स। तो आपको बहुत लिखना तो है नहीं, आपको 250 वर्ड्स में ही आपका सारी चीजें करने। तो कोई अगर बोलता है कि बहुत लिखना पड़ता है तो ऐसा कुछ है नहीं, आपको 250 वर्ड्स में आपको ऑप्शनल हो, नॉर्मल जीएस का पेपर हो या कोई भी चीजें हो, 250 वर्ड्स के अंदर आपको सारी चीजें खत्म करनी है। Sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, can you tell anything about NET exams? Attempt limit है क्या? May I when are your joining? No, sir. Exams में तो attempt limit है। 1 minute everyone, Jinal and Alistair, I'll get back to you. I'm talking to Amira right now. हाँ अमीरा बोलो। नहीं आप बोल रहे थे सर, आई कुडंट हियर यू। हाँ मैंने ये बोला कि 250 वर्ड्स में लिखना पड़ता है यूपीएससी का एग्जाम, एग्जाम लिखना पड़ता है वो 250 वर्ड्स में लिखना होता है। लेकिन अगर मैं मेरा सजेशन की बात करूँ तो ऑप्शनल वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। सागर माइक ऑफ करो, तुम सुबह से सारे पेरेंट्स को बताते बैठ रहे हो कि ये सेमिनार है, ये है, माइक ऑफ करके बैठो। सागर परमार। हाँ तो आमीना देखो, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ऑप्शन सब्जेक्ट वही होता है। जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो ऑप्शन भी आप पढ़ रहे हो और आपको वो GS 3 में काम भी आएगा। पॉलिटी की बात करूं, पॉलिटी भी पढ़ रहे हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, तो अगर आप उसकी बात कर रहे हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव पबैट होता है ऑप्शन। अगर आप वो पढ़ रहे हो तो आपको पॉलिटी के सेकंड GS 2 में भी काम आएगा। अगर आप हिस्ट्री ले रहे हो तो आपको GS 1 में भी काम आएगा। ज्योग्राफी ले रहे हो तो आपको GS 1 में भी काम आएगा। तो ये सारी चीजें आप ऑप्शनल बोलो कि आपको कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं, ऑलरेडी यूपीएससी की पढ़ाई इतनी ज्यादा है तो हमें और ज्यादा बर्डन नहीं लेनी हो। जी जी
ठीक है, तो ऑप्शनल वो सिलेक्ट करो। बाकी पर्सनली एक मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे कि अगर मैं लोगों को अगर बताता हूँ तो मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ। मॉक टेस्ट से मैं लोगों के बारे में देखता हूँ कि उसको किस सब्जेक्ट में ज्यादा नॉलेज है। तो अगर जिसको ज्यादा नॉलेज है फिर मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा टेक दिस ऑप्शन। सर ये एग्जाम में कोई अटेम्प्ट लिमिट है क्या? बैंकिंग एग्जाम में कोई अटेम्प्ट लिमिट है? थोड़ा दूर से। सर आपका क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहा है? क्लासेस बेटा ऑलरेडी स्टार्ट होते रहते हैं, जैसे 4-5 बच्चे आते हैं मैं स्टार्ट कर देता हूँ। 5 बच्चे से ही बात स्टार्ट कर देता हूँ, बिकॉज एक साथ 100 लोगों को अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तो मेरा पर्सनल अटेंशन जाता नहीं। तो मैं धीरे धीरे सिर्फ 4-5 बच्चे आए तो आई स्टार्ट विद द क्लासेस। मैं ज्यादा बच्चों को, 100-150 बच्चे को स्टार्ट नहीं करता। Excuse me, everyone, please mute yourself. We are running out of time. It was very interesting question answer session and very informative and insightful. Don't worry about your worries and question answers. Don't worry, we are here to solve your queries, doubts. We are here to guide you. The problem is we are running out of time because we have scheduled meeting accordingly. It will automatically get logged out, which we don't want. We want to give credit to Shubham sir and other participants and the other students because of your cooperation, your participation. Your efforts, we have done this event successfully. So before we get log out of the session, let us complete certain formalities. And don't worry, participants, students, we will give you the contact details of the assistants of the Shubham sir and from his academic classes or whatever. So your queries and doubts will be taken care of by their assistants. Okay, so don't feel offended, please. Only thing I want to say is just see the difference between, I would like to compare myself with Shubham sir in the context of opportunity. Just see the difference. When I was doing my graduation, before graduation, I was a dropout student. Okay, I dropped my school in 8th standard and then joined school, and then I did graduation and other things. But I was aspirant for defense and then civil services. The only problem was no idea, no friends, no idea, no colleagues, no elders to guide what to do, where to go, whom to contact, when to start, or nothing. But then to somehow I managed. Today I have reached this level. But you can see the person who got right advice at the right point of time and acted on those right things. Now you can see the difference at the age of 23 where he is, and still he is aspiring for more heights to be achieved. So what I want to say, as he rightly said, that work on your today. Okay, I'm so glad, sir. Thank you so much, sir. So yesterday in my lecture I told in the class that push yourself, no one is going to do for you. So teachers, other speakers and people will come and they will show you the direction and path, but it is ultimately you who has to walk upon that path. Okay, so thank you so much, Shubham Shah and Mega Ma'am and other volunteers of the CGC. I now request the student to give vote of thanks. Yes, Kajal, go ahead. Kajal. Thank you, sir. Good evening, everyone. Myself. Sir, I conclude myself. एक ही चीज बोलूँगा sir कि I'll put my assistant's number और group में. Yes, sir, definitely. Yes, sir. तो कुछ जिनको भी doubts हैं तो आप personally via मेरे से contact कर सकते हैं. Sir, you can provide those numbers to us. We will share with all these participants. Okay, Yes, I'll share it to you, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. We will share in the WhatsApp group. All the students, I will share it. Okay, thank you, ma'am. Kajal, you may go ahead, please. Kajal, Secretary of Career Guidance said, would like to thank you, Suham sir, for enlightening us on today's topic. We will be grateful to you, sir. Thank you so much. I would also like to thank our principal, Dr. Lily Bhushan ma'am, and the vice principal, Dr. Kanan, for allowing us to give
conduct the event. I would also like to thank Dr. Megha Sharma ma'am, Dr. Urmila Singh ma'am, and Jatin sir for providing us the our opportunity. I would also like to thank our career guidance cell team to for their efforts and supports. Last but not the least, dear participant, without your participation, this event would not be successful. So thank you for your presence. Thank you, everyone. Thank you, Shubham sir, and thank you everyone. Thank you very much, Shubham sir. Thank you so much, ma'am and sir. It was like fantastic session. बहुत टाइम बाद ऐसा मजा आया कि किसी से इंटरेक्ट हुआ, बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें बात की. Thank you so much, ma'am. Yes, thank you very much. Thank you very much, sir. I will end the session. Yes.